Click here to subscribe our channel. Do not forget to press the bell icon to get regular updates of free videos. So we can start with first of all orientation. So I will be briefly explaining the content part first, the strategy to prepare economics optional, and how we will be conducting the class. That means what you all are expecting from us, okay, and what we will be expecting from you. So I will be explaining all, and thankfully बारिश भी हो रही है, तो 2.5 hours it will be taking around initial 40 minutes, you can say 40-45 minutes for the orientation, and then I will be starting with the content part. So you must be aware with the syllabus part, but still everything you must be writing in your notebook. So first of all, the content part, as you know, it is divided into paper 1 and paper 2. So first paper, the major subtopic for first paper will be, one is advanced micro, but it is not that I will be starting directly from the advanced. जहाँ जहाँ बेसिक का रिक्वायरमेंट होगा वो बेसिक एक्सप्लेन हो जाएगा. मतलब ये नहीं कि एडवांस सिलेबस में लिखा हुआ है तो क्लास में सिर्फ एडवांस से ही स्टार्ट करना है. वी विल बी स्टार्टिंग विद द बेसिक. जहाँ जहाँ बेसिक इन्वॉल्व होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन the basic and then only I will go to the advanced part. Within advanced microeconomics there will be further 4 subtopics mentioned in the syllabus. Marshallian and valuation approach, or price determination, no need to write that. Then alternative distribution theories, after that market structure, and then fourth is welfare economics. Voice कम है, आ गया तो. Marshallian and valuation approach first, after that alternative distribution theories, and third will be the market structure, and fourth will be welfare economics. So 4 different parts in the microeconomics. Approximately the weightage for micro, you can say around 80 to 90 marks. 80 to 90 marks. Then second important part will be the advanced macro. Advanced macroeconomics. ठीक है, सिलेबस जो साइट के ऊपर अपलोडेड होता है उसमें देख लीजिएगा. एडवांस माइक्रो के अंदर मार्शिलियन वालेशन अप्रोच, देन डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज, मार्केट स्ट्रक्चर, मोनोपोलिस्टिक, डिओपोली, ओलिगोपोली, मॉडर्न वेलफेयर क्राइटेरिया including. But although syllabus is mentioning these 4 subtopic only, but there are other topic also not mentioned here, like consumer theory, production and cost, market failure, all are part of micro, and there will be a question from those section as well, but it is not mentioned in the syllabus. So the first purpose will be basically to cover all those topics which are written, जो लिखे हुए हैं पहले वो कर लेंगे, and then the purpose of this class is to draw the outer boundary which will include all those topics which are not specifically mentioned in the syllabus, but वो आप जज करेंगे from the previous year question कि previous year question में ये topic आ रखे हैं, that means this is part of your syllabus, although it is not written, लिखा हुआ नहीं है but वो syllabus का part हो गया. तो consumer theory नहीं लिखा है but we will have to explain it. Production cost is not mentioned but you have to cover it. Market failure not mentioned but there are frequently question has been asked from market failure, तो वो सारे पार्ट बेसिकली माइक्रो के अंदर कवर किए जाएंगे. एंड फॉर एवरी टॉपिक यू विल बी गेटिंग बेसिकली मतलब द टॉपिक वाइज क्वेश्चन, लाइक इन माइक्रो मार्केट स्ट्रक्चर. इस टॉपिक के कितने क्वेश्चन अभी तक पास्ट 25 ईयर में आए हुए हैं, ठीक है, जहाँ तक के क्वेश्चन अवेलेबल हैं. तो from market structure is you find 2 question in 2021, question 1, 2 and 3 question in 2020, then 2019 1, 2, 3, 4, and there was a 5th question as well. In 2018 again you will find 5 questions. तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं मार्केट स्ट्रक्चर से अभी तक आए हुए हैं,
जज करने का पॉइंट सिर्फ ये होता है स्टार्ट में जब आप क्वेश्चन के बेसिस पे जज करते हैं, दैट व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, वेटेज कितना है उस सेक्शन का, और उस सेक्शन से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चन का एक सिग्निफिकेंट सेक्शन है। मोर देन 50% क्वेश्चन यू विल फाइंड फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 50% क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिल जाएगा। रिमेनिंग क्वेश्चन ऑब्वियसली वो डायरेक्टली PYQ नहीं होगा, फॉर दैट पर्पज यू हैव टू कवर दी एडिशनल क्वेश्चन एज वेल, बट यू विल फाइंड एटलीस्ट 50% क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर। सो ये क्वेश्चन जब आप जज करते हैं तो यहाँ से लग रहा है कि विद इन मार्केट अगेन ओलिगोपोली इज देयर, मोनोपोलिस्टिक इज देयर, मोनोपोली इज देयर, परफेक्ट कंपटीशन इज देयर, मार्केट फेलियर विल बी देयर। बट क्वेश्चन से ये पता चल जाता है कि इस जो कंटेंट है उसमें किस मार्केट स्ट्रक्चर का वेटेज ज़्यादा, मतलब किस टॉपिक के वेटेज मोर फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, फ्रॉम ओलिगोपोली और इट इज़ मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली। तो कोई भी कंटेंट स्टार्ट करने से पहले आपका काम है आप क्वेश्चन को प्रॉपरली एनालाइज कर लीजिए। वंस यू नो द कंटेंट, मतलब ये एक्सपेक्टेड होगा आपसे कि ये क्वेश्चन आते हैं, तो आप जब स्टडी करेंगे तो उसमें आपका फोकस होगा कि ये क्वेश्चन आता है तो पहले मुझे वो पढ़ना है, ठीक है, प्रायोरिटी, बिकॉज टाइम आपके लिए भी स्केर्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रायोरिटी होगी जो क्वेश्चन आ रहा है पहले वो पढ़ना है, उसके बाद इफ़ यू हैव स्पेयर टाइम देन यू कैन रीड एक्स्ट्रा क्वेश्चन। बट पहली बात जो प्रीवियसली पास्ट ईयर में आ रखा है पहले मुझे वो कवर कर लेना है। सो फर्स्ट पार्ट विल बी द माइक्रो, फर्स्ट टॉपिक, एंड देन द सेकेंड टॉपिक इज एडवांस मैक्रो. Macro will be divided broadly into classical and Keynesian. Classical and Keynesian. The class will be basically beginning with this advanced macro today. So I will be explaining in detail, but broadly you can divide classical and these are two different school of thought. And जो old economics है, collectively they will be known as, मतलब जो classical economists है, they follow certain set of principle, so they have a certain belief about how economy works. The drawback of that classical has been pointed out by Keynes. तो Keynes के जो follower होंगे वो Keynesian economists होंगे. आज की डेट में जो economists है, some of them follow classical but with modification. They are known as post classical or neoclassical. Some follow Keynesian economics but they have modified Keynesian economics, so they will be called as post Keynesian or neo Keynesian. So what is the modification? But obviously the concept will start from where, जो old economics है, old thought, that is classical, पहले वो आप explain करेंगे, then only can understand the drawback. उस drawback को overcome करेंगे Keynes में. So basically it is a debate between classical and Keynesian. So although syllabus is simply mentioning classical, Keynesian, neoclassical, neo-Keynesian, but there will be a question from inflation and unemployment. There will be a question from design of monetary policy. So again in macro also there are question from investment, question from consumption. तो जो माइक्रो के साथ है वो मैक्रो के अंदर भी है. That means something you are observing and there will be some extra question as well. And weightage is approximately equal रहता है, but कभी माइक्रो का ज़्यादा हो गया कभी मैक्रो का, बट यहाँ भी आप अराउंड 80 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करोगे मैक्रो से भी. जैसे फॉर एग्जांपल ये टॉपिक है, सारे क्वेश्चन आपको साइट पे मिलेंगे. जो ऑनलाइन कर रहे हैं उनके लिए भी याद रखिएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके एक स्पायरल अलग मेंटेन कर लेना, आप लोग के पास भी होनी चाहिए. मतलब माइक्रो का माइक्रो, मैक्रो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, मनी एंड फाइनेंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पेपर 2, ठीक है. तो वो कलेक्टिवली वो आपका PYQ हो जाएगा अकॉर्डिंग टू टॉपिक वाइज. प्रेफरेबली अगर आप क्लास में रखें तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज आई विल बी रेफरिंग टू सम क्वेश्चन. So in 2021 you find 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है. बट यहाँ पे आपको 8 क्वेश्चन बेसिकली इसलिए दिख जाता है बिकॉज सम पार्ट इन मनी एंड फाइनेंस, तो मनी का जो क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी है या डिमांड फॉर मनी का आर्गूमेंट है, टेक्निकली वो मैक्रो का पार्ट है.
बट सिलेबस में कहाँ मेंशन्ड है वो, थर्ड सेक्शन में, मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर है वो, बट उसको मैंने क्वेश्चन में कहाँ इंक्लूड कर रखा है, मैक्रो वाले सेक्शन में, बिकॉज राइट प्लेस एक्चुअल में उसका मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा. Therefore you find basically 7 to 8 portion. Then in 2020 again you find many questions, so around 5 to 6 question will always be there from macro section. And after that it will be, third topic will be money, banking and finance. Money, banking and finance, you can divide it into two parts. One is the concept related to money, demand for money argument, and the concept of banking system. But ये इंडियन बैंकिंग सिस्टम की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ये पेपर 1 है. तो पेपर 1 में इज बेसिकली डीलिंग विथ मनी मल्टीप्लायर, डिपॉजिट मल्टीप्लायर, तो वो किसी स्पेसिफिक इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. यही कंटेंट अब अगर आप पेपर 2 में पढ़ेंगे तो वो इंडियन बैंकिंग सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे. हियर इट इज बेसिकली प्योर इकोनॉमिक्स, सो इट इज मनी मल्टीप्लायर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई पावर्ड मनी, whether it is autonomously determined or endogenously determined. One section will be related to money and banking, other will be related to the public finance. So that public finance will be basically dealing with questions like what are the approaches to tax equity, tax impose करना है तो उसका basis क्या होगा. One idea says tax should be according to the benefit, other says according to the ability. जिनमें ज़्यादा एबिलिटी है उसमें उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स इम्पोज हो. तो यू हैव टू कंपेयर बेनिफिट प्रिंसिपल विथ एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के क्राइटेरियाज, गुड टैक्स सिस्टम के कैनन्स क्या क्या है. सो देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चन रिलेटेड टू द पब्लिक फाइनेंस सेक्शन. एंड आफ्टर दैट द अदर इम्पॉर्टेंट पार्ट विल बी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स. जनरली जो माइक्रो, मैक्रो एंड मनी एंड फाइनेंस, इट कंस्टिट्यूट योर सेक्शन ए. क्वेश्चन पेपर के 2 सेक्शन होंगे, तो जनरली सेक्शन ए के क्वेश्चन माइक्रो, मैक्रो और फाइनेंस के होते हैं, बट ऑल्दो नॉट रिजिडली फॉलोड बाय यूपीएससी. सम क्वेश्चन फ्रॉम इंटरनेशनल मे बी अपियरिंग इन सेक्शन ए और सम क्वेश्चन ऑफ माइक्रो, मैक्रो मे बी अपियरिंग इन सेक्शन बी, बट यूजुअली ये फॉलोड होता है. And international you can divide it into 2 parts. One, all theories of trade, theories of international trade, and the theories of trade like a Ricardian model, HO model, standard trade model, specific factor model, new trade theories, old trade theories. That is what is the basis of trade, why two countries trade with each other. So obviously trade occurs due to some reasons, and most obvious reason is दो कंट्री के भी ट्रेड क्यों होता है. Why India and China will be trading? ट्रेड एक्चुअल में, ट्रेड इज ऑलवेज म्यूचुअली बेनिफिशियल. दोनों कंट्री के लिए बेनिफिट हो रहा होगा तभी ट्रेड हो रहा होगा. सो देयर मस्ट बी सम बेनिफिट. इट कैन नॉट बी द वन साइडेड अफेयर. ऑल्दो बेनिफिट कैन बी मोर और लेस, बट बेनिफिट मस्ट बी फॉर both the countries. So what are the reasons for trade? So reasons for trade could be like one country is labor abundant, so that labor abundant country will have cost advantage in producing labor intensive good, and capital abundant country will have comparative advantage in producing capital intensive good. So that means different countries have different factor endowment. So difference in factor endowment is one reason for trade. वो आइडिया है HO मॉडल का, ठीक है, जिसको मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया, बट वो डिटेल में यहाँ एक्सप्लेन करना है. देन द अदर सेक्शन ऑफ इंटरनेशनल विल बी बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, what is real exchange rate, what is nominal exchange rate, if there is a disequilibrium in balance of payment, how economy will adjust, adjustment policies, expenditure reducing policies, expenditure switching policies, elasticity approach, absorption approach. ये जो भी वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ वो जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो वो डिटेल में क्लियर हो जाएगा, बट इन व्हाट कंटेक्स्ट आई एम यूजिंग दोस वर्ड्स. तो डिवाइड करना बेसिकली आपको ये 2 सेक्शन में. रीज़न उसके पीछे ये है, थियरीज ऑफ ट्रेड, द बेसिस ऑफ थियरीज ऑफ ट्रेड इज माइक्रो and the basis of balance of payment is macro.
जो सेक्शन थियरीज डिवाइड होगा उसका फाउंडेशन होगा माइक्रो, दैट इज माइक्रो का बेसिक कंसेप्ट अगर मालूम है देन यू कैन अंडरस्टैंड, दैट मीन्स यू हैव टू अप्लाई इट. सो यू क्लास कैन नॉट स्टार्ट विद डायरेक्टली इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, क्योंकि उसके अंदर माइक्रो के बहुत सारे बेसिक आ जाएंगे. सिमिलरली बैलेंस ऑफ पेमेंट यू कैन नॉट स्टार्ट बिकॉज मैक्रो का बेसिक आता है. माइक्रो और मैक्रो आप इंडिपेंडेंटली स्टार्ट कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट विथ माइक्रो, यू कैन स्टार्ट विथ मैक्रो, बट इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का टर्न लेटर ऑन आएगा. एंड विल बी कवरिंग दिस टॉपिक इन डिफरेंट ब्लॉक, दैट मीन्स 10 to 12 लेक्चर हेयर, देन अनदर 8 to 10 लेक्चर हेयर. तो वो कंटिन्यूटी में नहीं होगा, अलग अलग करके होगा. एंड फाइनल टॉपिक इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. So growth and development will be basically considering various models of growth. That means you have to explain what determine growth. So if I say that, obviously what are the parameter of measuring growth? इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट 6.2% है, तो ये 6.2% का ग्रोथ जीडीपी का ग्रोथ है. सो जीडीपी इज एन इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ, बट इज इट अ बेटर इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ? इज इट अ गुड इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ? अगर जीडीपी डबल हो गया, पॉपुलेशन भी डबल हो गया, तो पर कैपिटा इनकम तो सेम ही रहेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल नॉट इम्प्रूव. सो यू कैन से द बेटर इंडिकेटर इज पर कैपिटा इनकम. बट दोनों में है तो इनकम ही है, तो आपने जीडीपी कंसीडर कर रखा है, तो जीडीपी कंसेप्ट इटसेल्फ हैज लिमिटेशन. तो फिर बेटर इंडिकेटर क्या क्या होंगे? बट तो एचडीआई का कंसेप्ट आएगा, फिर आईएसडीआई का कंसेप्ट आएगा. तो ये अलग अलग इंडिकेटर्स भी एक्सप्लेन करने हैं, बट बिफोर दैट आपको इसका कोर पढ़ना है, विच इज डिफरेंट मॉडल्स ऑफ ग्रोथ, विच विल इंक्लूड हैरट्स मॉडल, हैरट-डोमर मॉडल, लुइस मॉडल, हैरिस-टोडारो मॉडल, डिपेंडेंसी मॉडल, रोमर मॉडल. So there are in fact around 8 to 10 different models. Each model will be highlighting one dimension of growth. Growth itself depends upon various factors. तो कोई आप सिंगल मॉडल ऐसा नहीं ले रहे जो सारे फैक्टर को एक्सप्लेन करेगा, इट विल बिकम टू कॉम्प्लेक्स. सो ईच मॉडल विल बी हाईलाइटिंग one important dimension. So few growth models will be highlighting growth as a process of accumulating more capital. And what is the meaning of accumulating capital? Simple words में से इन्वेस्टमेंट कहते हैं. इन्वेस्टमेंट का मतलब एडिंग टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल एसेट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जो प्लांट और मशीनरी का स्टॉक है, अगर ये ऑगमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो प्लांट और मशीनरी अगर हम इंक्रीज करेंगे उसके स्टॉक को, देन वी आर यूजिंग दोज प्लांट एंड मशीनरी टू प्रोड्यूस गुड्स, एंड दोज गुड्स विल बी एडेड इन जीडीपी. तो some models say that economic growth is the outcome of accumulating more capital. some से दूसरा डायमेंशन होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोसेस में लेबर की मोबिलिटी भी है, फ्रॉम रूरल एरिया टू द अर्बन एरिया, फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर टू द फॉर्मल सेक्टर. वहाँ फिर लुइस मॉडल एक्सप्लेन करेंगे, हैरिस-टोडारो मॉडल एक्सप्लेन होगा. सम मॉडल से दैट ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन टेक्नोलॉजी. Ultimate factor which will determine growth is the level of technology. So why different countries differ in growth? Because they differ in terms of technology. Technology में वो different है. So what determine technical growth rate? That idea will be explained by the Romer model. और हर मॉडल के लिए आपके पास different sources होंगे. सोर्स आपको सर्च नहीं करना, वो ऑलरेडी सर्च है. यहाँ जो different स्पायरल मिलेंगे स्टडी मटेरियल, उसमें वो अलग अलग सोर्सेज लिखे हुए ऑल. सो यू डोंट नीड टू सर्च कि ये कंटेंट आपको कहाँ से पढ़ना है, वो काम ऑलरेडी हो चुका है. नाउ दिस इंटरनेशनल एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विल बी मेनली योर सेक्शन बी. ये सेक्शन बी का पार्ट होगा. जनरली इट विल बी पार्ट ऑफ सेक्शन बी. और जितने भी सिलेबस आप पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा हर जगह वो एक कॉमन इशू रहेगा. जो सिलेबस यहाँ पे आपको दिख रहा है, थियरीज ऑफ ग्रोथ, इट्स ए सिंपली थियरीज ऑफ ग्रोथ हैरोड्स मॉडल, बट इसके अंदर बहुत सारे हैं भी कंसेप्ट. ठीक है, बैलेंस ग्रोथ, अनबैलेंस ग्रोथ, लुइस, मतलब जस्ट यू कैन से एग्जांपल के फॉर्म में कुछ गिवन है सिलेबस में, तो उसको टोटलिटी नहीं मानना कि ये कंटेंट है, आपको वहाँ ऐड करना है, बट वो सारी चीज़ें क्लास के अंदर कवर हो जाएगी. सो दिस योर पेपर 1, और पेपर 1 के अंदर
जो सोर्सेज होंगे, मतलब ये कंटेंट आपको कहाँ से पढ़ना है, वो ऑलरेडी इस टेस्ट सीरीज वाले शेड्यूल के अंदर होगा, आप साइट से एक्सेस कर सकते हो। जो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल होगा वो आपके पास अवेलेबल होगा या साइट पे अवेलेबल है ओपन। वहाँ पे हर टॉपिक का, जैसे मान लिया फर्स्ट टेस्ट है ये माइक्रो का मार्केट स्ट्रक्चर है, सो मार्केट स्ट्रक्चर यू हैव टू रीड फ्रॉम चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 13 फ्रॉम कुट्सानिस। तो कुट्सानिस की पूरी बुक नहीं पढ़नी है, अराउंड 5-6 चैप्टर पढ़ने हैं। तो वो 5-6 चैप्टर आपके माइक्रो के स्पायरल में इंक्लूडेड है। दैट विल बी द सोर्स टू स्टडी मार्केट स्ट्रक्चर। वही सोर्स रेफर करेंगे, उसी सोर्स को रेफर करके आप क्लास के अंदर लिखोगे। तो जो क्लास का नोट्स होगा वो एक्चुअल में मेनली कुट्सानिस से कवर हो जाएगा माइक्रो का, इससे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि ओनली कुट्सानिस रहेगा, आई विल बी सप्लीमेंटिंग फ्रॉम अदर सोर्स, बट मेनली इफ यू हैव टू पिक वन then you are taking this. Similarly, macroeconomics classical model, only 2 chapter from Freud, chapter 3 and chapter 4. ठीक है, chapter 3 and chapter 4. The ISLM part, Keynesian model, chapter 3, 4, 5 and 7 from Dornbusch and Fisher. chapter 3, 4, 5 and 7, 4 chapters. वैसे ही जितने भी कंटेंट है हर सिलेबस के नीचे वो रेफरेंस बुक लिखी हुई है कि आपको वेलफेयर इकोनॉमिक्स लेटर से पढ़ना है तो वेलफेयर के लिए कौन कौन से बुक है, और जहाँ लिखा होगा टेक इट फ्रॉम ब्लिस पॉइंट मेल पे, वो इनफैक्ट आपके नोट्स वाले सेक्शन में अपलोडेड है। सो व्हेन यू ओपन द नोट सेक्शन, मतलब जो क्लास ऑफलाइन भी कर रहे हैं याद रखिएगा आपके पास टेस्ट सीरीज का ऑनलाइन एक्सेस होगा। ठीक है, ये नहीं कि हमारी क्लास तो ऑफलाइन हो रही है तो एक्सेस नहीं है। जो बिकॉज टेस्ट कम्प्लीटली आप उसे लिखने के लिए फ्री हैं, आप सेंटर पे लिखो, घर पे लिखो, बट अल्टीमेटली यू हैव टू अपलोड इट। आपको अपने पोर्टल पे अपलोड ही करना है। इवैल्यूएशन ऑनलाइन ही है, फिजिकल फॉर्म में इवैल्यूएशन नहीं है। तो फिर टेस्ट सीरीज का जो एक्सेस होगा उस कोर्स के अंदर आपके नोट्स वाले सेक्शन में सारी चीज़ें जो मैंने बताई है वो अपलोडेड मिलेंगी आपको। ठीक है, ऑल जितने भी मटेरियल आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में क्लास के अंदर बोल रहा हूँ, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। सो टॉपिक वाइज वो क्लियर है। इसको मैं एग्जांपल के लिए दिखा दे रहा हूँ, जस्ट लाइक दिस टाइप ऑफ स्पाइरल होंगे। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक अलग स्पाइरल होगा जिसमें मेनली क्रूगमैन वाले जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे वो इंक्लूडेड होंगे। सिमिलरली यू विल बी गेटिंग स्पाइरल फॉर माइक्रो, फॉर मैक्रो, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सिमिलरली इन पेपर 2। क्लियर, मतलब अराउंड 10 और 11 स्पाइरल होंगे इस तरीके के। तो कोई कंटेंट आपको बाय नहीं करना, कोई बुक बाय नहीं करनी है। ये एक्चुअल में बुक है बट ये सिंगल बुक नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस बुक्स होगी। ठीक है, नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद पेपर 2 ओरिएंटेशन, जैसे एक फॉर्म देख लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर पैटर्न, ऑल्दो विल बी फेमिलियर बट स्टिल मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ एक्सप्लेन करने हैं। So question paper will be divided into 2 sections. Section A, first question, it will have 5 parts, and this first question will be compulsory. ठीक है, so 5 क्वेश्चन है 10 मार्क्स के, 50 मार्क्स का ये क्वेश्चन कंपल्सरी है। सेक्शन बी will start from question number 5, A, B, C, D and E, 5 parts here also. This first question in section B is also compulsory. दोनों सेक्शन का पहला क्वेश्चन कंपल्सरी है, दैट मीन्स 100 मार्क्स का क्वेश्चन कंपल्सरी होगी। सो इन सेक्शन ए इस कंपल्सरी क्वेश्चन के अंदर यू विल फाइंड क्वेश्चन फ्रॉम माइक्रो, यू विल फाइंड क्वेश्चन ऑफ मैक्रो आल्सो एंड मनी एंड फाइनेंस आल्सो। ठीक है, वो ऐसे क्वेश्चन डिजाइन ही होते हैं, नॉट दैट ऑल माइक्रो या ऑल मैक्रो होगा, माइक्रो, मैक्रो एंड मनी एंड फाइनेंस। एंड इन सेक्शन बी जनरली इट इज इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेक्शन।
दैट मीन्स यू कैनॉट लीव एनी यूनिट इन टोटैलिटी, क्योंकि वो कंपल्सरी क्वेश्चन में रहना। देन क्वेश्चन नंबर 2, ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट। And the weightage will be basically 20 plus 15 plus 15, 50 marks का ये क्वेश्चन। सेकंड 3 parts। क्वेश्चन नंबर 3 again A B C, क्वेश्चन नंबर 4 A B and C। ठीक है, पैटर्न वही है ना। सो माइक्रो मैक्रो के क्वेश्चन और मनी एंड फाइनेंस के क्वेश्चन आपको सेक्शन ए के अंदर मिल जाएंगे। देन इन तीनों में कम से कम एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, एटलीस्ट वन। फर्स्ट कंपल्सरी हो गया एंड एटलीस्ट 1 ईयर। तो सपोज यू चूज क्वेश्चन नंबर 3। ना क्वेश्चन नंबर 6 A B and C, क्वेश्चन नंबर 7 सेम पैटर्न एंड क्वेश्चन नंबर 8। Clear? Again choose at least one from this section also. Suppose you choose question number 8, तो 2 कंपल्सरी हो गए 100 मार्क्स, दो सेक्शन के एक क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट 100 मार्क्स 200 मार्क्स। फिफ्थ क्वेश्चन यू आर फ्री टू चूज फ्रॉम एनी सेक्शन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन आप फ्री हो आइदर सेक्शन ए और सेक्शन बी। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू कि वहाँ क्वेश्चन पेपर में कौन सा इजी आपको लग रहा है और इन विच सेक्शन यू फाइंड कंपैरेटिव एडवांटेज। ठीक है, किस क्वेश्चन को आप बेटर हैंडल कर सकते हो। सो इन टोटलिटी यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 8। ठीक है, सो कंपल्सरी क्वेश्चन 100 मार्क्स का हो गया, रिमेनिंग 150 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो इनफैक्ट जो क्वेश्चन पेपर बन रहा है वो कितने मार्क्स का हो गया, 400 मार्क्स का है। आप अटेम्प्ट कितने का कर रहे हो, 250 का। तो जो मैंने वेटेज बोला था 80 to 90 मार्क्स, वो 2 आउट ऑफ 250 नहीं है, आउट ऑफ 400 हो। ठीक है, आउट ऑफ 400। ठीक है, जो कंटेंट का डिवीजन होगा वेटेज वो होगा आउट ऑफ 400। नाउ आउट ऑफ दैट 400 यू आर अटेम्प्टिंग बेसिकली 250 मार्क्स क्वेश्चन। नाउ कम टू द स्कोरिंग पार्ट, हाउ मच यू कैन स्कोर फ्रॉम हियर। अब ये 10 मार्क्स के तो कंपल्सरी क्वेश्चन है। अब कंपल्सरी जो क्वेश्चन होगा उसमें आंसर एग्जैक्ट रिक्वायर करता है 1.5 साइड यूजुअली यू आर राइटिंग, बेसिकली 1.5 साइड इन दी अराउंड 150 वर्ड्स लिखने होते हैं। क्वेश्चन कम जो पेपर होगा उसके अंदर बेसिकली वो आंसर शीट के साथ रहती है। मतलब इट इज़ नॉट कि क्वेश्चन पेपर अलग है और आंसर शीट अलग है। क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट मतलब फर्स्ट पेज के ऊपर फर्स्ट एक क्वेश्चन वहाँ प्रिंटेड है, उसी के नीचे लिखना है। सो नो मैटर इन विच मैनर यू आर अटेम्प्टिंग, इवेल्युएट तो फर्स्ट यही होगा। पहले आपने किसी ऑर्डर में उसको लिखा हो, यानी कि मुझे बेस्ट आता था मैंने पहले लिख दिया, उसमें पहले वाले सिस्टम में एडवांटेज होता था कि जो बेस्ट आया वो आपने पहले लिखा। बट यहाँ पे बेस्ट या बस जो भी है आपको सबसे पहले एग्जामिनर को तो फर्स्ट ए ही दिख रहा है। तो जब आप फर्स्ट सेक्शन का कंपोजिशन लिख रहे हैं देन गिव सम एक्स्ट्रा टाइम और थोड़ा बेटर लिखना उसको, बिकॉज नोइंग दैट दिस विल बी द क्वेश्चन विच विल बी इवेल्युएटेड फर्स्ट। नाउ अब जरा स्कोर या मार्क्स को कंसिडर कर लीजिए, कितने मार्क्स बेसिकली आ रहे हैं या कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर क्वेश्चन डिफ़िकल्ट भी है, लेटर से बहुत डिफ़िकल्ट पेपर आ गया, मतलब आपकी किस्मत बिल्कुल ही ख़राब थी, वो वाला ईयर हो गया बिल्कुल, वो पेपर डिफ़िकल्ट आ गया, इवन इन वर्स कंडीशन आउट ऑफ दिस 400 you will find 150 marks question very easy out of 400, 150 marks question easy means it will be coming from previous year question, और previous year question आपको मालूम है वो आपने ओवर अ नोटबुक में लिखा हुआ है, प्रैक्टिस कर रखा है। इन दैट वे इट इज़ ईजी, इट इज़ नॉट द अदर वे राउंड। ईजी का मतलब ये है कि आपने उसको प्रैक्टिस किया हुआ है, लिख करके प्रैक्टिस किया, अंडरलाइन दैट वर्ड, लिख करके प्रैक्टिस किया, पढ़ के नहीं। अगर आपने सिर्फ पढ़ा हुआ है और बुक में अंडरलाइन कर रखा है
या मैंने यहाँ से मॉडल आंसर दिया उसको भी पढ़ लिया, क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया वो आपने सुन लिया है, बट कभी आपने लिखा नहीं खुद। तो एग्जामिनेशन में तो मैं ये कह रहा हूँ कि 150 मार्क्स का जो क्वेश्चन है इजी फॉर देम जिन्होंने उस आंसर को लिखा हुआ है। अगर इफ यू हैव रिटन दोज आंसर्स 2 or 3 टाइम्स यू कैन स्कोर हियर 2/3, दैट मीन्स 95 to 100. 100 मार्क्स यू कैन स्कोर आउट ऑफ दैट 150। ठीक है, वो मतलब बेस्ट आंसर होता है यहाँ पे मार्किंग सिस्टम में वही। अगर इफ यू आर राइटिंग अ आइडियल आंसर, बेस्ट आंसर आउट ऑफ 10, 6.5, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मार्किंग स्कीम ही है। मतलब वो आप फॉर्चुनेटली कभी 7 मिल गया अगर न्यूमेरिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा है, बट एक्सपेक्ट अराउंड 2/3। नाउ रिमेनिंग 100 मार्क्स which is difficult, out of that remaining 100 marks if you just score a passing percentage around 35 or so, even then your score is 135। तो 35-40 का स्कोर अगर मुझे आउट ऑफ मिलता है, आउट ऑफ 100 में मैंने क्या इंक्लूड किया है, यू मे बी फाइंडिंग सम न्यू क्वेश्चन जो बिल्कुल कभी पढ़ा ही नहीं था, और वो भी क्वेश्चन कहाँ पे आ गया, कंपल्सरी में आ गया है, मतलब कोई चॉइस नहीं है वहाँ, मतलब वो क्वेश्चन रह गया, छूट गया। तो मान लिया कि दोनों सेक्शन में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन फेस करने पड़ गए, तो जो प्रॉब्लम यूजुअली फेस करने को आता है मैं उससे आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। यू मस्ट बी अवेयर दैट देयर मे बी सम क्वेश्चन इन कंपल्सरी जो बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स आ गए, नए क्वेश्चन आ गए, बट ऐसे पूरे नहीं मिलेंगे, 1 मिलेंगे इन वर्स कंडीशन। तो इफ़ यू स्कोर अराउंड 135, अगर दोनों पेपर में आप ये मेंटेन कर लेते हैं तो 270-75 का स्कोर है, विच इज़ कंसीडर्ड एज वेरी गुड स्कोर। 270s में अगर आप स्कोर करें इट इज़ कंसीडर्ड एज गुड, बट यू कैन स्कोर दैट गुड इवन इन वर्स कंडीशन। आई एम सेइंग ये कंडीशन मैंने वर्स कंडीशन लिया है जब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए, और 100 मार्क्स तो यू आर स्कोरिंग ओनली 35। बट इफ़ यू नो मोर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस आपने और कर रखा है, कवरेज थोड़ा ज़्यादा है, देन यू कैन स्कोर मोर ऑल्सो। बट टारगेट ऑफ 275 अराउंड is considered as a realistic target nowadays after 2018 onwards। 18 तक तो हम 300, 310, 320 भी बोलते थे। रीज़न उसके पीछे ये, द मार्किंग स्कीम आफ्टर 2018 फॉर ऑप्शनल हैज़ बिन मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट। जो मार्क्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे कह रहे हैं। टिल 2018 अराउंड 8-10 स्टूडेंट्स आपको इकोनॉमिक्स के अंदर भी मिल जाते थे जिनका 300 प्लस होता था, 335 का स्कोर भी होता था, 317 भी है, 320 भी है। बट अब 2020 और लास्ट ईयर के रिजल्ट को अगर देखें तो जिनका रैंक टॉप 10 में भी है उनके भी 300 ऑप्शन में। इट इज़ नॉट विथ रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक्स ओनली, फॉर रीज़न ही कि 18 तक एक परसेप्शन हो गया था स्टूडेंट के बीच कि जनरल स्टडीज़ में नंबर नहीं आता है, अगर सिलेक्शन होगा तो ऑप्शनल में 300 लाने पड़ेंगे। तो उस परसेप्शन को यूपीएससी ब्रेक कर रहा है, और ब्रेक करने का मतलब है अब जनरल स्टडीज़ में स्कोर आ भी रहे हैं, अगर 100 दिख भी रहे हैं वहाँ पे, बट यहाँ पे अब 300 रेयर होते जा रहे हैं। और अब सब्सटेंशिएट करने के लिए कुछ मार्क्स मैं शेयर कर ले रहा हूँ। ये 2021 का रिजल्ट है, तो जैसे एक आइडिया आपको लग जाएगा कि ठीक है वेयर मतलब कितने नंबर पे किस तरीके के रैंक यूजुअली मिल जाते हैं। तो अब ये रैंक 88 है, बट मार्क्स 277 है, और फर्स्ट अटेम्प्ट है। ठीक है, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ पे, अटेम्प्ट आपका कौन सा है, बट फर्स्ट है और 277 है, 131 और 146, 112 बट 145 एंड 128, 273। यार ये मैंने 270s के स्कोर आपको बोले, और उस 270s पे बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे जो सेलेक्ट हो जा रहे हैं विद 285, बट 285 आ गया पेपर 1 में, थोड़ा पुश मिल गया 154। नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, ठीक है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है तो मेरे नंबर तो आने ही चाहिए, नहीं नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। जिन्होंने पढ़ा होता है जनरली उसी के नंबर कभी कम आ जाते हैं। मतलब इकोनॉमिक्स ऑप्शनल होता है तो पीटी में इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन गलत करने के चांस बढ़ जाते हैं, बिकॉज यू थिंक अ लॉट। ठीक है, तो डोंट थिंक लाइक अ इकोनॉमिस्ट, जस्ट जर्नलिस्ट की तरह सोचो, आंसर सही होगा।
तो यार 260, 252, 271, 281, 270, 263, 278, 279, 277, 281, अब 281 है बट सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये पॉसिबल है कि आपका स्कोर तो अच्छा हो ऑप्शनल में, बट फाइनल सिलेक्शन, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू बैलेंस। आपका स्कोर ऑप्शनल में जनरल स्टडीज में इट हैड टू बी बैलेंस। यू कैन गेट अ रैंक विथ 252 ऑल्सो, और यू मे बी आउट ऑफ लिस्ट विथ 281 ऑल्सो। 30 मार्क्स का डिफरेंस है ऑप्शनल के अंदर, बट एक लिस्ट में और एक लिस्ट से बाहर है। तो ये स्कोर मैं सिर्फ इससे बता रहा हूँ क्योंकि आज की डेट में ये रियलिस्टिक टारगेट, सो डोंट सेट अ अनरियलिस्टिक गोल दैट यू विल बी स्कोरिंग अराउंड 350। ठीक है, वो मैं भी प्रॉमिस नहीं करूँगा, आप भी होप नहीं करना, इट विल बी बेटर। ठीक है, रियलिस्टिक गोल होगा तो ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा अगर नंबर नहीं आए तो। क्लियर? तो ये पॉइंट को याद रखिएगा, बट ये यू कैन स्कोर ओनली इफ यू प्रैक्टिस अलॉट। सेम थिंग you have to follow in paper 2. Now this was all about in paper 1. Briefly I will explain for paper 2 so that you can start with the content part. The nature of paper 2 is quite different from paper 1. Paper 1 is more objective in nature. That means if you know the thing, if you are writing in the proper language, स्कोर वहाँ आ जाएगा। बट पेपर 2 में सब्जेक्टिविटी ज़्यादा है, योर आंसर कुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स आंसर, और दोनों के स्कोर आ रहे हैं, ये पॉसिबल है। तो ऑब्जेक्टिविटी है यहाँ पे, आप यहाँ पे फ्री हो अपने लैंग्वेज में आंसर लिखने के लिए। बट पेपर 1 में यू हैव टू राइट बुकिश लैंग्वेज ज़्यादा, तो बुक का जो लैंग्वेज आप नोटबुक में लिखेंगे वही प्रैक्टिस करोगे और वही वहाँ लिखना है। Syllabus is dividing it into 3 parts, you can say. One is pre-independence, Indian economy. Then post-independence is divided into 2 parts. One is pre-liberalization. Pre-liberalization, or you can say pre-1991. ये प्री 1947 हो गया, 1947 टू 1991 का सेक्शन इधर आ जाएगा, एंड पोस्ट और सिंस 1991, 3 सेक्शन में डिवाइडेड। It says Indian economy in the pre-independence era, then Indian economy after independence, the pre-liberalization period and post-liberalization period. But I will suggest, और ये हमने इनफैक्ट 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, और वो ज़्यादा बेटर है। सिलेबस को आप 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक सेक्शन तो प्री इंडिपेंडेंस ले लेंगे। Pre-independence Indian economy. Then you have to study Indian economy sector wise. Sector wise means take one sector as agriculture. All agriculture related topic of pre-liberalization as well as post-liberalization will be included here. ठीक है, एग्रीकल्चर के सेक्शन में ऑल टॉप प्री एंड पोस्ट दोनों को आप इंक्लूड कर लीजिएगा। देन take industry, club it with services. Industry and services will be another. Industry and services will be another. और हर टॉपिक के लिए अगेन टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में मिलेंगे, लाइक इट इज प्री इंडिपेंडेंस एरा इंडियन इकोनॉमी। Now last year in 2021 you find 4 क्वेश्चन, ठीक है, 4 क्वेश्चन। अब प्री इंडिपेंडेंस का जो सेक्शन है उसमें कोई डायनेमिज्म नहीं है। एक जनरल क्वेश्चन होता है कि जो सेकंड पेपर होगा वो टू डायनेमिक इन नेचर है, तो आप सिर्फ ये जज कर लो इस क्लास के बाद कि कितना सेक्शन डायनेमिक है। तो जो प्री इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन होगा उसमें कोई डायनेमिज्म, it is dealing with commercialization of agriculture in the colonial period, land tenure system,
रेलवेज, जूट और कॉटन इंडस्ट्री स्पेसिफिकली, ठीक है, तो ड्रेन थियरीज, तो ऐसे, और वो क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेडली है क्वेश्चन, अब जाके देख लो इसमें क्वेश्चन कई बार रिपीट हो, मतलब अराउंड 7 to 8 टॉपिक ही बनते हैं, तो 7 to 8 टॉपिक में यू विल फाइंड 3 to 4 ऑलवेज, दैट मीन्स यू नो दोज क्वेश्चन इन एडवांस, सिर्फ एक्सपेक्टेड है कि आपके पास वो आंसर होना चाहिए और वो प्रैक्टिस होना चाहिए और टू सम एक्सटेंट लर्न हो जाना चाहिए, सो दैट आप डायरेक्टली उसको लिख लो। तो ईच टॉपिक मतलब इस पहले सेक्शन के अंदर नहीं होना है। सिमिलरली एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, ये सेक्शन अगर आप देखते हैं तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री वाले सेक्शन में भी यू हैव टू आइडेंटिफाई द एरियाज, मतलब कौन कौन से एरियाज से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन एग्रीकल्चर व्हाट कुड बी द एरियाज, एग्रीकल्चर वाले सेक्शन से कौन कौन से सेक्शन बन सकते हैं, यूनिट लाइक एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, फूड मैनेजमेंट, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो वहाँ से क्वेश्चन देख करके क्या करना है आपको, सारे सब टॉपिक निकाल लेने के दीज आर द एरियाज, एंड देन रिलेटेड टू दोज एरियाज आपके पास नोटबुक में क्या होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है कि ये प्री 91 है या पोस्ट 91 है। देन another section will be all questions of public finance, like GST, उसका इम्पैक्ट, टैक्स रेवेन्यू या टैक्स रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस होंगे, या FRBM एक्ट है उसमें क्या मॉडिफिकेशन था, फाइनेंस कमीशन। बट अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी है, लाइक फाइनेंस कमीशन, कौन सा फाइनेंस कमीशन, किस फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन फॉलोड हो रहे हैं राइट नाउ, एनके सिंह ने नंबर बताओ 15th। तो यूजुअली 15th ऑब्वियसली वो 2015 to 2020 तक के पीरियड के लिए, उसके 20 और उसके बाद के लिए। बट क्वेश्चन लास्ट ईयर वाज रिकमेंडेशन ऑफ 12th फाइनेंस कमीशन। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि 12th उन्होंने पूछ लिया तो मैं फर्स्ट से लेकर के 15 तक सारे रिकमेंडेशन याद करूँगा, इट इज़ नॉट फिजिबल। तो ऐसे प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं, बट वो उस कैटेगरी में है जो मैंने कहा कि लेटर से वो डिफ़िकल्ट हो गया, बिकॉज अगर उन्होंने 12th पूछा हुआ इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा डायरेक्शन मोड़ दो कि आप सारे रिकमेंडेशन याद कर रहे हो, इट इज़ नॉट फिजिबल। आप पढ़ोगे तो 15 थी, ठीक है, जो रिसेंट होगा वही पढ़ेंगे, उसको कंपेयर करने के लिए जस्ट पास वाला पढ़ लिया। तो बट देयर कुड बी स्ट्रे क्वेश्चंस आल्सो। देन अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट विल बी दी मॉनेटरी, ठीक है, जितने भी मॉनेटरी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वो सारे एक साथ क्लब कर दीजिएगा, मॉनेटरी सिस्टम एंड बैंकिंग। मॉनेटरी सिस्टम एंड बैंकिंग। देन एक्सटर्नल सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर, composition and direction of trade, trade policies, all those questions will be included in, plus like capital account convertibility। अब तारापुरे कमेटी के रिकमेंडेशन सबको जनरली मालूम है, बट वहाँ पे तारापुरे कमेटी 1 and 2 दोनों ऐड कर दिया क्वेश्चन के अंदर, कि फर्स्ट और सेकंड दोनों के रिकमेंडेशन बताने। तो एक्सटर्नल सेक्टर, देन टॉपिक्स लाइक few question will be from planning and development, club all problems in one, like poverty, unemployment, inequality, population। Then one is growth and its composition, ग्रोथ इट्स कंपोजिशन या ग्रोथ का ट्रेंड। जैसे आपसे कहा जाए कि ग्रोथ ट्रेंड एनालाइज करो सिंस 1991, या ग्रोथ ट्रेंड एग्जामिन करना है सिंस प्लानिंग पीरियड।
तो एक आइडिया होना चाहिए कि 1951 से लेकर के 2022 तक का ग्रोथ रिकॉर्ड क्या है. ग्रोथ रिकॉर्ड मीन्स एटलीस्ट ट्रेंड यू शुड बी नोइंग. In first 3 decades was characterized by the low growth rate, popularly known as the Hindu rate of growth, term used by Rajkrishnan. So that low growth rate was the first 3 decades. After that there was significant increase in 1980s. So what was the reason for that increase? Reform तो 91 में हुआ, but growth momentum 1980s में बढ़ा. So what was the reason for it? ठीक है, वो मालूम होना चाहिए. 1990 onwards, due to economic reform, growth momentum further increased, but that momentum was lost after 1997-98 due to lack of the second generation reform. So first generation reform was required for initiating the growth, but you need more growth for sustaining it. So growth initiating reform was there, but growth sustaining reform was not there. So slowdown is from 97 to, we can say, 2004. 2004 onwards there was a significant increase in the growth rate, referred as the golden period of the growth rate, till 2009-10. But after that slowdown, and to some extent we can say that slowdown persist, मतलब वो slowdown basically persist कर रहा है. तो उसके अंदर भी आप फर्दर डिवीजन लेते जाएंगे. जो क्रिटिकल ईयर होगा उस क्रिटिकल ईयर को आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट. तो उस कंटेक्स्ट में बिकॉज क्वेश्चन होते हैं. If the question is, say, examine the trend of GDP in the last decade, तो लास्ट डेकेड में एग्जामिन करना है, मतलब 2010-11 के बाद का रिकॉर्ड एग्जामिन करना है. Then question becomes more difficult for you. If you have to examine the trend since independence, it is an easy question because बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे. तो जैसे जैसे पीरियड स्क्वीज होता जाएगा वो क्वेश्चन डिफिकल्ट होता जाएगा फॉर आंसरिंग पॉइंट ऑफ व्यू. And one section you can prepare for all the schemes जो current topics होंगे. नहीं, यहाँ तो बेसिकली इंडियन पर्सपेक्टिव में है, बट आंसर लिखते समय यू आर फ्री टू कंपेयर इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ विद दी अदर कंट्रीज इफ यू हैव स्पेस एंड टाइम या नीड ऑफ द क्वेश्चन. अगर है ग्रोथ रिकॉर्ड आप एग्जामिन कर रहे हैं तो पहले तो एक्सप्लेन कर देना यहाँ पे. But obviously when you are explaining within growth also there were 2-3 तरह से एनालिसिस होती है. वन इज द ग्रोथ इन एग्रीगेट. एग्रीगेट में आपने एक्सप्लेन कर दिया कि ये इंडिया का ग्रोथ हो गया, जीडीपी का ग्रोथ रेट हो गया. बट इफ आई से दैट द ग्रोथ रेट ऑफ इन 19 और वी कैन से ग्रोथ रेट ऑफ 1950 to 1980 was the low growth rate. After that there was a high growth rate, but was it uniform also for all the states? आप पहले आउटसाइड या अदर कंट्रीज में कंपेयर करने से पहले आप विद इन स्टेट देखोगे. स्टेट लेवल ग्रोथ देखना है, रीजनल डायमेंशन देखना उसका. तो वन डायमेंशन इज बेसिकली द रीजनल, द स्टेट लेवल ग्रोथ. देन यू कैन कंपेयर विद अदर. ऑल स्टेट्स आर नॉट ग्रोइंग एट सेम पेस, सो व्हाई देयर इज अ डिफरेंस? सो देयर मस्ट बी रीजन फॉर इट. सो यू मस्ट बी नोइंग दोज रीजन्स और फिर वो पॉइंट्स के फॉर्म में ऐड करना. सिमिलरली यू कैन कंपेयर इंडियन इकोनॉमी विद द ग्रोथ रेट ऑफ चाइना, growth rate of other countries, but generally it should be, the comparison is valid if you are comparing it with the comparing countries with the same level of development, then the comparison is valid. Comparison of Indian economy with the US economy or European countries is not valid comparison. ठीक है, तो all those वो points basically consider होंगे. So these are the 10 topics for paper 2, and for paper 2 the source, this pre-independence section you can read from SSM Desai, Economic History of India. Scanned copy of it is uploaded in your note section. ठीक है, बुक इजी बुक है, पॉइंट्स के फॉर्म में है, शॉर्ट बुक है लाइक नॉवल, बट 7-8 क्वेश्चन बेसिकली यहाँ से मिल रहे हैं. 3-4 क्वेश्चन ऑलवेज आ रहे हैं. सो इफ यू रिलाई ऑन वन बुक यू कैन कीप. तीर्थंकर रॉय भी पढ़ते हैं, बट तीर्थंकर रॉय से आपको आंसर खुद फ्रेम करना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज होगा, और ये इजी टू हैंडल है, इजी टू राइट और इजी टू फ्रेम आंसर. सो दिस विल बी बेसिकली फॉर फर्स्ट प्री इंडिपेंडेंस. आफ्टर दैट you can
रेफर मिश्रा एंड पुरी, इंडियन इकोनॉमी. एडवांटेज ऑफ दिस इज दैट अगेन पॉइंट्स के फॉर्म में है और कुछ स्टैटिक चीज़ें आपको प्रिपेयर करके रखनी है. लाइक फॉर एग्जांपल सपोज यू आर रीडिंग इंडस्ट्री. विद इन इंडस्ट्री देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स. इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस. नाउ इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस सिंस इंडिपेंडेंस, आपको सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, वो स्टैटिक चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी. देन क्वेश्चन इज ऑन पब्लिक सेक्टर. सो क्वेश्चन ऑन पब्लिक सेक्टर, चैप्टर ऑन पब्लिक सेक्टर विल बी डीलिंग विद द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, इवेल्युएशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, बट यू नीड पॉइंट्स टू आंसर. स्टूडेंट के पास क्या अवेलेबल होना चाहिए, आपके पास सर्टेन 7-8 पॉइंट हो, सो दैट यू कैन फ्रेम 7 to 8 पैराग्राफ. 2.5 साइड अगर आप लिख रहे हैं, 2 साइड लिख रहे हैं, तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए अबाउट 7 to 8 पॉइंट्स का, so that you can build on it or elaborate it. So it will basically help there. तो वैसे चैप्टर को बेसिकली पूरी बुक नहीं पढ़नी है, रिमेंबर. इंटायर बुक यू डोंट रीड. फर्स्ट ऑफ ऑल योर वर्क शुड बी टू सी व्हाट. क्वेश्चन देखने का काम पहला काम करना है, बुक बाद में पढ़ना है. ये नहीं कि पहले पढ़ लेते फिर क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन देखने से समझ में अभी आपको समझना नहीं है, आपको सिर्फ एरिया निकालने हैं. These are the areas from which question has been asked. वो एरिया जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. सो फर्स्ट वर्क इज दैट, एरिया आइडेंटिफाई किया, फिर चैप्टर पे जाएंगे. देन रीड द चैप्टर, प्रिपेयर द कंटेंट, एंड देन कम टू क्वेश्चन अगेन, वेदर यू आर एबल टू राइट द आंसर ऑफ इट और नॉट. फर्स्ट में स्पेसिफिक पे नहीं जाना है कि क्वेश्चन का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन के थीम पे जाना है कि दिस क्वेश्चन इज रेफरिंग टू एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, नॉट स्पेसिफिकली. तो एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी का चैप्टर पढ़ लेंगे, कंटेंट पढ़ लिया, देन कम बैक टू क्वेश्चन अगेन. एंड अनदर इज ओमा कपिला, बट ओमा कपिला इज मेनली एडिटेड बुक. इसमें एपीडब्ल्यू के आर्टिकल्स मिल जाएंगे आपको, क्वालिटेटिवली बेटर, बट अगेन यू हैव टू फ्रेम आंसर देयर. आपको खुद आंसर बनाने पड़ेंगे वहाँ. और मिर्जापुरी में क्या मिल जाएगा आपको, पॉइंट्स मिल जाएगा. बट एपीडब्ल्यू में आर्टिकल्स हैं, तो मतलब एपीडब्ल्यू आर्टिकल है, वो आर्टिकल रोटेट होकर के एपीडब्ल्यू में भी होता है. अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी आ रहा है, वो एडिटेड फॉर्म में आ जाएगा. सो इट इज़ योर चॉइस बेसिकली, बट आई विल सजेस्ट दिस. ऑल्दो स्टडी मटेरियल विल बी इंक्लूडिंग वेरियस एपीडब्ल्यू आर्टिकल्स. ठीक है, जो स्टडी मटेरियल है वो एपीडब्ल्यू आर्टिकल है, और जो रिसेंट एपीडब्ल्यू आ रहे हैं उसके अंदर कुछ मेन टॉपिक आएंगे, वो भी नोट्स के सेक्शन में अपलोड हो जाएगा. तो ये नहीं कि आप एपीडब्ल्यू सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं और उसे पढ़ रहे हैं, तो डोंट वेस्ट दैट टाइम. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज योर सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे. ठीक है, ये 4th पार्ट ले लीजिएगा सर्वे के लिए पेपर 2 में. सर्वे ऑफ 2021-22 जो लास्ट का है. अभी फॉर द टाइमिंग इफ़ यू आर रीडिंग यू कैन रीड, बट अदरवाइज ये आपको 2022-23 का जो फरवरी के मंथ में आएगा उसके बाद पढ़ना है. और उसे पढ़ते समय ये नहीं कि क्वेश्चन डायरेक्टली सर्वे से आना है, इट इज नॉट लाइक दैट. सपोज यू आर रीडिंग दिस सेक्शन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर का कंटेंट आपने मिर्जापुरी से ही पढ़ा, बट वहाँ अलग अलग चैप्टर्स थे, ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस एंड सो ऑन. वही टॉपिक आपने फिर सर्वे में देखा एग्रीकल्चर का, वो रिसेंट हो गया आज की डेट में, तो रिसेंट डेटा आ जाएगा. इंट्रोडक्शन पार्ट जस्ट रीड एंड जस्ट कॉपी दैट इन योर नोटबुक. विद इन एग्रीकल्चर देयर इज हेडिंग ऑफ फूड मैनेजमेंट. अब सर्वे जाकर के ओपन करके ना, फूड मैनेजमेंट के अंदर जो फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है, वेल क्राफ्टेड वर्ड्स सेंटेंसेस होते हैं. जस्ट उस पैराग्राफ को क्या करना है, अंडरलाइन करके अपने नोटबुक में लिख लेना. ऐसे अराउंड 25-30 पैराग्राफ आपको पूरे सर्वे में मिल जाएंगे इन्वॉल्विंग वेरियस टॉपिक्स. उसको आपने सेपरेटली लिख लिया, उसको ट्राई करना है कि वो लर्न हो जाए, एंड देन यू विल बी एबल टू इनकॉर्पोरेट इट इन एटलीस्ट अराउंड 8 to 10 क्वेश्चन. आई विल से आपने 25-30 पैराग्राफ लिखे हैं, आउट ऑफ दैट 8 to 10 क्वेश्चन में वो, बट जिस क्वेश्चन में आपने इनकॉर्पोरेट कर लिया, इन दोज क्वेश्चन विल स्कोर मोर, क्योंकि उस आंसर का इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है. ठीक है, तो सर्वे ये कंटेंट सोर्स में इसके अलावा कुछ नहीं करता. बाकी जो न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं वो सप्लीमेंट, वैसे भी GS3 से टू सम एक्सटेंड ये हेल्प मिल जाएगा. क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दी
कंटेंट ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2। तो रिलेटेड टू कंटेंट कुछ एडिशन नहीं चाहिए मुझे, पेपर 1 में कुछ नहीं चाहिए, पेपर 2 के अंदर नहीं चाहिए। अब नाउ रिक्वायरमेंट इज ओनली हाउ एग्जॉस्टिव विल बी योर क्लास नोट्स। आपका जो क्लास नोट्स होगा वो कितना एग्जॉस्टिव होगा, उस सोर्स को रेफर करके क्लास नोट्स हो रही है। एंड आफ्टर राइटिंग दोज एग्जॉस्टिव नोट्स देन यू हैव टू सी द क्वेश्चन में बार बार एम्फेसाइज नहीं कर रहा, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू डील विद इट। सो देयर विल बी अ डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एज वेल। जो टेस्ट होगा उसके अलावा आपको डेली आंसर भी लिखने हैं। डेली आंसर मीन्स बेस्ड अपॉन दिस क्लास, इफ यू कैन आंसर 1 or 2 क्वेश्चन आई विल पॉइंट इट हेयर। वो टॉप प्रीवियस ईयर वाले होंगे सर, तो मैं सिर्फ अगर यहाँ पे शो कर दूंगा कि ठीक है बेस्ड ऑन दिस क्लास यू कैन आंसर दिस 2 क्वेश्चन, तो आपको बेसिकली क्या करना है, फिर घर जा करके वो 2 आंसर लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ आई से बेस्ड ऑन दिस क्लास यू कैन आंसर क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। कंटेंट आपने नोटबुक में लिख लिया, अब बट वो नोट्स है और घर जाके उसको क्या लिखना है, हमें आंसर लिखना है। तो आंसर विल बी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। फिर वो आप लेकर के आओ और एग्जैक्टली उस क्वेश्चन में क्या लिखना था, यू विल बी गेटिंग द मॉडल आंसर एज वेल। वो मॉडल आंसर बेसिकली इस फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, लाइक द क्वेश्चन ऑन एचओ मॉडल, so what you have to write in the first paragraph, what you have to write in the second paragraph, वो एग्जैक्टली मैं लिख करके दूंगा। एंड दिस टाइप ऑफ अराउंड 400 to 500 क्वेश्चन विल बी गेटिंग ओवर अ पीरियड। 400 to 500 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन अगर 2 साइड में भी लिख रहे हैं तो अराउंड 1000 पेज का तो आपके पास रिटन मॉडल आंसर का कंटेंट होगा। दैट मीन्स ऑल प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर आपके पास होंगे ऑलमोस्ट। दैट मीन्स इट इज पार्ट ऑफ बेसिकली योर टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो एवरी डे 1 or 2 क्वेश्चन में, मतलब 2 क्वेश्चन लिखने हैं, अराउंड हाफ एन आवर आप आंसर लिखने पे लगाओ। एंड एवरी मंथ राइट 1 टेस्ट। ऑल्दो ये शेड्यूल या अपलोड हो जा रहा है वीकली, जिनका मेंस 2022 का है दे विल बी राइटिंग दिस टेस्ट वीकली, और जो 23 के लिए कर रहे हैं वो यही क्वेश्चन लिखेंगे इन अ मंथ। दैट मीन्स आफ्टर 1 month राइट द फर्स्ट टेस्ट, ठीक है। मंथ में 1 टेस्ट लिखना है, तो अपने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ये करेंगे तो आपका सेक्शनल टेस्ट हो जाएगा। और फिर दिसंबर के मंथ में यू कैन राइट ऑल द कॉम्प्रिहेंसिव, बाय दैट टाइम ये सिलेबस भी ओवर हो जाएगा। एंड योर ऑल ऑप्शनल कंटेंट शुड बी रेडी बाय ईयर एंड एट द मैक्सिमम। ईयर एंड तक आपका हो जाना चाहिए सर, सो दैट यू कैन फोकस ऑन प्रीलिम्स आफ्टर और फ्रॉम जनवरी। मतलब लास्ट के जो 4-5 मंथ होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 28 मई का प्रीलिम्स होगा नेक्स्ट ईयर का, तो अराउंड 5 to 6 मंथ बिफोर दैट आपको अपना ऑप्शनल ओवर कर लेना। तो कंटेंट आपने कर लिया, बट अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू राइट दिस टेस्ट। सो वन गो में आपका ये हो गया डेली आंसर राइटिंग प्लस टेस्ट प्लस कंटेंट। सो योर सिलेबस ऑफ ऑप्शनल विल बी कंप्लीट। आफ्टर प्रीलिम्स यू विल बी टेकिंग द टेस्ट, बट वो नेक्स्ट टेस्ट होगा जो नेक्स्ट सेशन के लिए स्टार्ट होगा। क्लियर? तो जैसे इस बार जून में स्टार्ट हुआ वैसे जून में स्टार्ट होगा फिर से। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपने कंटेंट कर रखा है, यू हैव टू राइट ओनली द टेस्ट। क्लियर? एनीथिंग एल्स? So approach is clear. So now we can start with the content part, and this batch is starting with a macro section first. ठीक है, अब आप सेपरेट एक स्पायरल मेंटेन करेंगे, मतलब डोंट राइट एवरीथिंग इन वन। macro in a separate spiral, micro in a separate spiral, international in a separate spiral, growth and development separately, paper 2 separately। और अपने उस स्पायरल में जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन होगा उसको वहीं स्टेपल कर लेना, सो दैट एवरीथिंग, क्वेश्चन, डिस्क्रिप्शन, आंसर, एवरीथिंग विल बी एट वन प्लेस। ठीक है?
So starting with macroeconomics. First is divide this macro into two parts. That is classical economics and Keynesian economics. Classical and Keynesian. As classical economics is based upon certain set of principles. So I will be basically using this first class to explain the main differences between classical and the Keynesian, so that the perspective will become clear. So whenever you say it is classical economics or Keynesian economics, they follow certain set of principles. So the old economists, they were basically following certain core principles, and collectively they are known as, so it is not one, that means a group of economists follow certain basic principles, so they are known as classical economics. Now the classical economists said that output, when I write here a Y, it stands for basically output और GDP कह सकते हो आप. Macro context में सारी चीज़ें aggregate है. This is not output produced by firm, this is output produced by economy as a whole. So in the classical model, it is said that output is a function of, that means it depends on. It depends upon stock of capital, it depends upon labor, it depends upon technology. So I am just simply stating that output is a function of capital, and but which capital? Is it financial capital or real capital? It is, or both. It is real capital. Real capital means plant, machinery, equipment. They will determine the output. Labor will determine how much output will be produced. Technology will determine how much output will be produced. But when you write it in the Keynesian approach, in Keynesian approach, I will write Y is equal to AD. That means output is determined by demand side. Output is determined by the demand side. Here output is determined from the supply side. Here output will determine from demand side. So in the macroeconomics, you also, and aggregate demand means demand made by household for consumption, demand made by firms for, demand made by government, and there could be economy, could be open economy also, so there could be export, and so plus net export. So when you write Y is equal to AD, then you are basically following Keynesian. When you write Y as a function of capital and labor, then it is classical model. The classical model is in fact a long run description of economy. That means they will be explaining economy from long run perspective, and Keynesian economics will be explaining economy from short run perspective. They will be explaining economy from short run perspective. So one is a long run, other is short run. Now how to relate? Suppose if I say that in India, GDP of India in 1951 was less, in 2022 it is more. So obviously it has increased many times. What could be the reason? GDP क्यों increase हो गया? 51 में जितना होता था और 2022 में it has increased many times, but what could be the reason? Over a period of time we have more plant and machinery, more labor force, better technology, therefore economy is able to produce more of the output. Clear? If I say that the GDP of Indian economy in 2021 was less as compared to GDP of 2020, तो क्या 20 के कंपेयर में 21 में इकोनॉमी का स्टॉक ऑफ कैपिटल कम हो गया था? नो. लेबर फोर्स कम हुआ है, टेक्नोलॉजी इंफीरियर हो गई. सो व्हाट कुड बी द रीज़न?
द रीजन कुड बी लो डिमांड, प्लांट और मशीनरी तो वही है, बट ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड और लो डिमांड फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग लेस. वन रीजन तो आप कह सकते हैं ठीक है कोविड और पेंडेमिक की वजह से हो गया, बट इफ इन वन पर्टिकुलर ईयर GDP has reduced as compared to the previous year, or the growth rate has reduced as compared to the previous year, then it is basically because of low demand. तो plant और machinery is there, but उस plant और machinery पे अगर every day 1000 कार का प्रोडक्शन होना था, वो 60% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा है. प्लांट और मशीनरी तो वही है, सो प्रोडक्शन इज लेस ड्यू टू लो. बट अब आप यहाँ डिफरेंस करो, व्हेन आई सेड 1951 to 2022 आई एम टेकिंग अ लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव, एंड इफ आई कंपेयरिंग current year GDP with the previous year, then it is short run perspective. So classical concept will be valid in, and Keynesian concept will be valid in. तो ये इकोनॉमी को जज करने के दो पर्सपेक्टिव है. वी आर नॉट here to judge whether it is this is correct or this is correct. Both are correct. One is correct in, other is correct in short run. Both are correct. So these are two different approach, we can say. These are two different approach to study the economy. Now जो classical concept है, in this classical concept it is said that economy is always characterized by full employment. Economy is always characterized by full employment. That means labor market is always characterized by full employment. Labor market is always characterized by full employment. But what is the meaning of full employment? Full employment does not mean that everyone is employed. Full employment का मतलब वो नहीं है. Full employment only means that labor market is in equilibrium always, which means labor demand is equal to labor supply. Labor demand is equal to labor supply. So in the classical model, full employment basically refers to equality of labor demand and labor supply. अब आप ऑब्वियस से क्वेश्चन करोगे कि अगर डिमांड और सप्लाई बराबर नहीं होंगे तो क्या होगा. They argue that if labor demand is not equal to labor supply, then wage will change and wage will adjust immediately. Wages are flexible in the classical model. So classical concept say that labor demand, n को employment से relate करना. If labor demand is more than labor supply, if labor demand is more than labor supply, then what will be the impact on wage? Wage will increase. If labor supply is more than, wage will fall. So flexibility of wage guarantees that there will be full employment. Wage की flexibility guarantee करता है कि there will be full employment. Flexibility of wage guarantees that there will be full employment. So classical assumption is what? They are assuming that wages are flexible. Wages can change and it can change immediately. But Keynes argue that we generally observe unemployment. They are saying that it is always characterized by full employment. बट केन्स का कहना है कि इकोनॉमी में तो हम अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. और तो अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअल में किस कंडीशन में होगा? अनएम्प्लॉयमेंट है दैट मीन्स लेबर सप्लाई इज मोर एंड लेबर डिमांड इज लेस. ये सिचुएशन है, तभी तो अनएम्प्लॉयमेंट होना है. लेबर का सप्लाई ज़्यादा, दैट मीन्स दे आर विलिंग टू वर्क बट देयर इज लैक ऑफ जॉब. बट क्लासिकल कंसेप्ट में अगर ये सिचुएशन होगा तो वेज रिड्यूस हो जाता है. केन्स का कहना है कि वेजेस कैन नॉट रिड्यूस, वेजेस आर रिजिड. वेज की रिजिडिटी होती है. इट कैन गो अप बट इट कैन नॉट गो डाउन. एंड व्हाई वेजेस आर रिजिड? देयर इज प्रेजेंस ऑफ लेबर यूनियन. यूनियन विल नॉट अलाउ वेजेस टू फॉल. गवर्नमेंट का अपना मिनिमम वेज लॉ है. यू कैन नॉट गिव वेज लोअर देन दैट. तो वो लीगल रिस्ट्रिक्शन भी तो इम्पोज्ड है. तो लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई आर नॉट ऑलवेज इक्वल एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिजिडिटी ऑफ वेज. इन क्लासिकल मॉडल, सॉरी इन केनीशियन मॉडल, वेजेस आर रिजिड. तो जो की डिफरेंसेस है उस पर नोट करना है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
आपको रिलेट करना होगा, मैक्रो में थोड़ा एप्लीकेशन का काम होगा, मतलब ये ब्रॉडर पॉइंट्स जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जस्ट कीप इट इन माइंड. So that means when you are referring to condition, then output is determined from demand side. It is basically short-run description. Wages are rigid due to minimum wage law or labor union presence and other reasons. But in classical model, output is determined from supply side. It is determined by real factors like real capital, labor, technology. It is a long-run description. Full employment is the feature, and full employment is guaranteed due to wage flexibility of wages there. Then classical further said that their further next argument was that supply creates its own demand. Supply creates its own demand, popularly known as Say's law. Supply creates its own demand, मतलब किसी गुड्स का सप्लाई अगर होगा तो डिमांड इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड. डिमांड विल बी ऑटोमेटिकली जनरेटेड. सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, बट हाउ यू कैन एलेबोरेट इट? Supply creates its own demand. मतलब if you supply a product, demand in the economy will automatically be generated. But how supply is creating demand? अगर आपने किसी प्रोडक्शन किसी पेन को प्रोड्यूस किया, how I can guarantee that there will be demand for this pen also? अब जरा इसको जो उनका लॉजिक है पहले वो समझ लेंगे. According to them, if you supply any particular product, just think how this product will be produced. To produce any product, we need factor of production, like we need labor, we need capital, we need land. तो फिर labor will be paid wage, capital will be getting interest, land will be getting rent. तो फिर ये उनका इनकम है. That means production generates income. Production generates income. So if production is generating income, and classical believe that whatever money will be generated, that will be spent. वो फर्दर नेक्स्ट प्रिंसिपल है उनका ये मानना है कि जो भी मनी हमारे पास आएगा हम उससे क्या करेंगे? स्पेंड करेंगे. वी आर नॉट कीपिंग फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस. सो मनी इज प्लेइंग ओनली वन रोल, एंड दैट इज टू एक्ट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी का सिर्फ एक ही काम है, टू एक्ट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एंड वी कीप मनी ओनली फॉर ट्रांजेक्शन पर्पस. तो फिर प्रोडक्शन से इनकम जनरेट हो गया और उस इनकम को हमने क्या किया? स्पेंड किया. तो यू आर स्पेंडिंग ऑन व्हाट? द गुड्स प्रोड्यूस. जो इनकम जनरेट होता है वर्कर के लिए, जो वेज मिला, उस वेज को अल्टीमेटली वो खर्च कर रहा है, वो प्रोडक्शन के ऊपर खर्च करता है. इन दैट वे सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. नाउ if supply creates its own demand, then how we can explain recession? अगर क्लासिकल सही है तो रिसेशन में क्या होता है? सप्लाई तो रहता है बट डिमांड, दैट मीन्स देयर इज सम फ्लॉ इन दिस आर्गुमेंट. सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड अगर है, तो इफ आई से देयर इज अ रिसेशन इन द इकोनॉमी, तो रिसेशनरी कंडीशन में जनरली फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग द आउटपुट बट दे डू नॉट फाइंड बायर. डिमांड कम हो गया. तो अगर ये आर्गुमेंट सही है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, तो फिर रिसेशन कभी नहीं होना चाहिए. बट रिसेशन थे और ग्रेट डिप्रेशन भी रहा, मतलब पूरे डेकेड तक भी रहा. उस कंटेक्स्ट में केन्स के कंसेप्ट का इवोल्यूशन है. मतलब ग्रेट डिप्रेशन जो 1929 टू 1939 रह गया बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो 1936 वॉज द ईयर जब केन्स ने अपने आर्गुमेंट को प्रोवाइड किया. दैट मीन्स द डिप्रेशन कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग classical principle, because they believed that supply always creates, so they failed to explain what is happening during the recession. So that point was elaborated by Keynes. So the Keynesian argument is that supply is not always creating the demand. Supply is not always creating the demand, or that point can be explained by taking another difference.
demand for money in the classical concept. Money is demanded in classical concept only for transaction purpose. Money is demanded in classical concept only for, that means we keep money because money helps to buy goods. That is the only purpose of keeping money. If you have more than that money, don't keep money, better to keep bond, because bond will give you some return, cash will not. 100 रुपये रखा तो 100 ही रहेगा, बट बॉन्ड पे अगर हमने लगा रखा है तो फ्रॉम दैट बॉन्ड यू विल बी गेटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो क्लासिकल व्यू कह रहा है कि मनी का जो डिमांड होगा उसमें सिर्फ ट्रांजेक्शन है. वी कीप मनी ओनली फॉर ट्रांजेक्शन पर्पस एंड दे बिलीव दैट मनी परफॉर्म ओनली वन रोल, दैट इज टू एक्ट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. केन्स इज जस्ट एडिंग वन मोर कंपोनेंट. वो ये नहीं कह रहे कि क्लासिकल गलत कह रहे हैं, वो कह रहे हैं क्लासिकल डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर रहे. मनी इज बीइंग हेल्ड फॉर ट्रांजेक्शन पर्पस एज वेल एज फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस. सो डिमांड फॉर मनी विल हैव टू पार्ट, ट्रांजेक्शन प्लस स्पेकुलेशन. Demand for money will have two part, transaction and speculation both, and I will explain briefly because वो later on भी explain होगा, money वाले section के अंदर भी आना है. The argument given by classical was that if you are keeping money for transaction purpose, if you have more than that, you will keep what? Bond and not cash. Keynes कह रहा है कि अगर हमने transaction money रखा है, इसके अलावा sometimes it is better not to keep bond but to keep idle cash. कैश पे रिटर्न नहीं है, क्लासिकल कह रहे कैश पे नहीं है, बॉन्ड पे रिटर्न है, तो हम कैश ना रख करके क्या रखें, बॉन्ड रखें. केन्स कह रहे कि इन सम सिचुएशन इट इज बेटर टू कीप कैश रादर देन बॉन्ड. जैसे फॉर एग्जांपल सपोज पर्सन ने 100 रुपीज़ का बॉन्ड बाई कर लिया और बॉन्ड पे प्रॉमिस है दैट बॉन्ड विल बी पेइंग 10% रिटर्न. तो उसका मतलब है आज के रेट में आपने 100 रुपीज़ पे किया, यू परचेज दैट बॉन्ड, ऑन दैट बॉन्ड 10 रुपीज़ हैज़ बीन प्रॉमिस टू यू. बट एक साल के बाद अगर हम बॉन्ड सेल करने जा रहे हैं तो व्हाट इज द गारंटी दैट व्हाट विल बी द प्राइस? इट कुड बी हायर और इट कुड बी लोअर ऑल्सो. तो सपोज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर बॉन्ड का वैल्यू घट गया है तो बॉन्ड का वैल्यू अब 70 रुपीज़ मिल रहा है, मतलब जो बॉन्ड आपने 100 में बाई किया था उसको एक साल बाद बेचने गए तो वो 70 का बिक रहा है. 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट तो मिल गया बट साथ में आपका कैपिटल लॉस हो गया. तो हाउ यू कैन प्रिवेंट इट? प्रिवेंट कर सकते थे जब हमने 100 का 100 अपने पास कैश रखा होता, बॉन्ड बाई ही नहीं करते. ठीक है, तो जस्ट लाइक शेयर मार्केट है, डिविडेंड मिल रहा है बट शेयर की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी वो अनसर्टेन हो गया, रिस्क इन्वॉल्व है वहाँ. तो इन सम सिचुएशन इट इज़ बेटर टू कीप कैश रादर देन बॉन्ड, एंड दैट सिचुएशन व्हेन वी प्रेफर टू कीप कैश रादर देन बॉन्ड कैन एक्सप्लेन रिसेशन. रिसेशन में एक्चुअल में क्या हुआ, हमने उसको खर्च नहीं किया है, स्पेंड नहीं किया है. वी आर हैविंग मनी बट वी आर नॉट स्पेंडिंग इट, लैक ऑफ डिमांड हो गया वहाँ. तो ये इकोनॉमी को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट एंगल्स एक्सप्लेन करना, क्लासिकल और केनेशियन में. तो मेजर पॉइंट्स में ये क्लासिकल में यू कैन राइट हियर मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज द रोल ऑफ मनी, एंड इन केनेशियन it is medium of exchange plus store of value. Money performs other role as well. Money performs other role as well. It is acting as medium of exchange as well as store of value. इसको आप अलग दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हो. Why person keep money in fixed deposit? बैंक में भी अलग अलग अकाउंट है, सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, करंट अकाउंट डिपॉजिट. तो वाई यू कीप मनी इन करंट अकाउंट डिपॉजिट? उस पर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिलता नहीं है, तो फिर रखते क्यों हैं? ट्रांजेक्शन करने के लिए वो. सो दैट इज बेसिकली सेटिस्फाइंग व्हाट?
ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी कंसेप्ट, एंड व्हाई यू कीप इन द फिक्स डिपॉजिट, वो स्टोर ऑफ वैल्यू है, वो स्टोर ऑफ वैल्यू है। अगर कैश रखा होगा अपने पास तो उस पर कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, और फिक्स डिपॉजिट में रखा है तो उस पर, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू इन्फ्लेशन द वैल्यू ऑफ मनी विल फॉल। तो आप उस वैल्यू को क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो बाय कीपिंग इट इन द फॉर्म ऑफ फिक्स डिपॉजिट। सो द रोल ऑफ मनी आर मेनी, दोज रोल हैज बीन इलैबोरेटेड बाय केन्स। तो क्लासिकल को उसने मॉडिफाई किया। अब जो जब उसने मॉडिफाई किया तो एक पॉइंट है यहाँ पे, उसने केन्स क्लासिकल को रिजेक्ट नहीं किया, मतलब क्लासिकल का जो कंसेप्ट है उसको एज इट इज ले लिया, उसमें सिर्फ क्या कर दिया, ऐड कर दिया। मतलब ये हो गया कि क्लासिकल ने ये मान रखा है दैट ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स अपॉन इनकम। तो फिर केन्स ने भी क्या मान लिया, उसने तो बस ऐड किया था, उसने उसको रिजेक्ट तो किया नहीं। तो केन्स ने भी क्या माना कि जो ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी है इट डिपेंड्स अपॉन इनकम, बट दिस इज केनिशियन थॉट। जो पोस्ट केनिशियन है, जो आज की डेट के इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कहा कि इवन ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी इंटरेस्ट रेट का फंक्शन है। तो जो इकोनॉमिस्ट ये बोल रहा है कि ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है, वो केनिशियन हुआ या पोस्ट केनिशियन हो गया, पोस्ट केनिशियन हो गया, क्योंकि केन्स को मॉडिफाई कर दिया उन्होंने। तो ये सारे क्वेश्चन बेसिकली आपको दिख जाएंगे पास्ट वाले क्वेश्चन में, देखोगे डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी इज इंटरेस्ट रेट इलास्टिक, एक्सप्लेन दैट पार्ट। तो इंटरेस्ट रेट इलास्टिक मीन्स ट्रांजेक्शन पूछ रहे हैं और इंटरेस्ट रेट इलास्टिक पूछ रहे हैं, मतलब वो इंटरेस्ट रेट का फंक्शन है, तो वो पोस्ट केनिशियन एक्सप्लेन करना है। तो जब आप पोस्ट केनिशियन पोस्ट क्लासिकल करेंगे तो एक्सप्लेन करना। ग्रुप है, मतलब लाइक मार्शल है, पिगू है, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर एडम स्मिथ है, रिकार्डो है, 2000 बेसिकली क्लासिकल। और केनिशियन में केन्स के एक्चुअल में फॉलोअर हैं, बट जो न्यू केनिशियन है या जो न्यू क्लासिकल है लाइक फ्रीडमैन है, फेल्प है, उसने क्लासिकल को मॉडिफाई कर रखा, दे आर न्यू क्लासिकल। फिर एक दे सेपरेट ग्रुप ऑल्सो कॉल्ड मॉनिटरिस्ट। तो ये जब आप देखो, सिंपल मैक्रो को समझने का बेटर फॉर्म ये है, आप स्टार्ट करोगे अभी मतलब 19th सेंचुरी वाला, उधर पुराना स्टार्ट कहाँ से करेंगे, क्लासिकल से। फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग विदाउट मेकिंग एनी जजमेंट कि वो सही है या गलत है। पहले मॉडल को उसके अकॉर्डिंगली समझना है, दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड क्लासिकल मॉडल बेस्ड अपॉन द असम्पशन। इफ यू चेंज दैट असम्पशन तो फिर जो आउटकम आएगा वो डिफरेंट आएगा, बट इफ यू चेंज द असम्पशन देन यू आर बेसिकली फॉलोइंग व्हाट, केनिशियन। तो क्लासिकल ने एक व्यू दिया, उसको केन्स ने एक्चुअल में काउंटर किया। फिर जो केन्स का आर्गुमेंट आया तो क्लासिकल ने खुद को डिफेंड किया बाय एडिंग सम मोर पॉइंट्स। तो जो डिफेंस है वो बेसिकली न्यू क्लासिकल हो गया। ठीक है, तो ये अलग अलग आर्गुमेंट बेसिकली आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। वन ब्रीफ पॉइंट हियर, लाइक इन द क्लासिकल सप्लाई कर्व विल बी वर्टिकल, ये भी क्लास के अंदर एक्सप्लेन हो जाएगा, डिराइव हो जाएगा, बट इट विल बी वर्टिकल इन द क्लासिकल। तो यहाँ आउटपुट है और यहाँ प्राइस है। नाउ no matter where you plot the demand curve, output will remain same. No matter whether you plot this demand curve lower or above, the output will remain same, and output is always equal to what, full employment output. क्लासिकल मॉडल में हमेशा क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट है। एंड हाउ इट इज गारंटीड, वेज फ्लेक्सिबिलिटी। सो हियर आउटपुट इज डिटरमाइंड फ्रॉम विच साइड, supply side. When you study Keynesian argument, then this aggregate supply will be horizontal. I will explain that कि horizontal क्यों होता है, vertical क्यों होगा, ये भी derive होगा। Now when you draw this demand curve here, then position of demand curve will determine the output. So what determine output here? इस डायग्राम में आउटपुट का डिटर्मिनेशन किस कर्व से हो रहा है,
डिमांड कर्व के पोजीशन से हो रहा है. इफ यू शिफ्ट द डिमांड कर्व, आउटपुट विल इंक्रीज. केनेशियन सेड दैट आउटपुट इज डिटरमाइंड फ्रॉम डिमांड साइड. वो तो कह रहे हैं आउटपुट डिटरमाइन से डिमांड से डिटरमाइन होता है. तो केनेशियन आर्गुमेंट में आउटपुट इज डिटरमाइंड फ्रॉम, एंड दिस आउटपुट इज नॉट फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट. दिस आउटपुट इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट. ये फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट से कम है. दिस इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट. बट इसका मतलब ये नहीं कि ये आउटपुट हमेशा इंक्रीज होता रहेगा. केन्स भी ये कह रहा है कि आउटपुट कब तक बढ़ेगा. आप डिमांड शिफ्ट करोगे तो आउटपुट बढ़ेगा, बट टिल यू रीच फुल एम्प्लॉयमेंट. वंस यू रीच फुल एम्प्लॉयमेंट देन व्हाट विल हैपन. फिर जो क्लासिकल कह रहे हैं वही होगा. केन्स ने ये बोला कि फुल एम्प्लॉयमेंट हमेशा नहीं होता है, और क्लासिकल ने क्या मान लिया था, ऑलवेज होता है. इट इज ऑलवेज द केस. But once you reach the full employment, then again it will become the classical one. That is, it will become vertical. ये दो polar extreme है, मतलब vertical and horizontal. In reality, it is neither vertical nor horizontal. It will be positively slope. वो positively slope होगा, but that will be a neoclassical concept. तो यहाँ तक का पॉइंट बेसिकली याद रखेंगे कि आउटपुट का डिटर्मिनेशन क्लासिकल में किससे हुआ है, सप्लाई साइड से हो रहा है, और केन्स में आउटपुट का डिटर्मिनेशन किससे हो रहा है, डिमांड साइड से हो रहा है. सो वन इज डिमांड साइड इकोनॉमिक्स, अदर इज सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स. सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द सप्लाई साइड. क्लासिकल पढ़ने जा रहे हैं. तो अभी फर्दर टाइमिंग आप बिल्कुल केन्स के आर्गुमेंट को या न्यू क्लासिकल को हटा दीजिए. फोकस ऑन व्हाट क्लासिकल सेड. Focus on just what classical said. Classical basically said what? Output determined from supply side, full employment, wage flexibility, money is demanded only for transaction purpose. So those are the principle on which classical system is based. उस context में basically आप ये explain करने जा रहे हैं. ठीक है? So now we have to explain the classical model. But हाँ बिल्कुल, we can. If I say that output is determined from supply side, so if you are saying that output is determined from supply side, it is a function of capital and labor. So I am not referring what, government expenditure or money supply here. It means what, government expenditure, money supply, that is fiscal policy or monetary policy, is not going to affect output in classical model. But when you write that y is equal to AD and that AD include, so here you are mentioning government expenditure directly. So fiscal policy will affect the output. Even monetary policy will be affecting the output because that will change rate of interest, and rate of interest will affect investment. तो क्लासिकल मॉडल में फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव नहीं होती है. एंड टू एक्सप्लेन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द मॉडल. वो पॉलिसी इंप्लीकेशन है. व्हाट यू आर सेइंग इज पॉलिसी इंप्लीकेशन. सो फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी विल नॉट वर्क. इट इज नॉट इफेक्टिव. बट जस्ट सेइंग दैट इट इज नॉट इफेक्टिव इज नॉट इनफ. आपको एक्सप्लेन करना है इन अ कंटेक्स्ट. सो व्हेन यू एक्सप्लेन क्लासिकल इक्विलिब्रियम मॉडल, remember, to explain the model I will be using three tools. One will be classical aggregate supply, classical AS. तो फर्स्ट वर्क है ये क्लासिकल AS डिराइव करना. आफ्टर दैट क्लासिकल AD, and there is a third argument which is known as loanable fund theory of interest. Loanable fund theory of interest. Classical AS, classical AD and loanable fund theory, and all these three has been explained in chapter number 3, but chapter number 3 is only dealing with what? Chapter 3 of Freud.
Chapter 3 explain one part. Chapter 4 will explain both. So chapter 3 and chapter number 4 ये रेफरेंस होगा आपके लिए. When you come to a conclusion, मतलब मॉडल को जब आप एवेलुएट करोगे कि पॉलिसी वर्क होती है नहीं वर्क करती है, बिफोर कमिंग टू दैट क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी फेमिलियर विथ ऑल थ्री. इन तीनों से फेमिलियर हो जाएंगे तभी आर्गुमेंट एक्सप्लेन करेंगे. दैट मीन्स आप अभी इकोनॉमी का वन साइड देख रहे हो सिर्फ, एंड दैट साइड इज सप्लाई साइड. दिस इज वन साइड, दैट इज सप्लाई साइड. ये सप्लाई साइड एक्सप्लेन करता है. तो अभी कोई कंक्लूजन नहीं बोल रहा कि which policy will work, which policy will not work, whether it will partly work, in which condition it can work. You can explain those things once you know all the tools of classical model. So one tool is classical AS. So focus on classical AS part first, then we can explain the ADN. तो अराउंड 3 to 4 लेक्चर ये आपको लग जाएगा क्लासिकल मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए. नहीं, बुक नहीं बाई करना. ये 3-4 जो बोला वो कोई मैक्रो वाले स्पाइरल में है, डोंट नीड मटेरियल. वो बुक नहीं बाई करनी. ऑलरेडी अगर है नो प्रॉब्लम, बट बाई नहीं करनी. ठीक है, देखो अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्सप्लेन दिस क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व. क्लियर? क्लासिकल एस. दिस विल बी द लास्ट डायग्राम, मतलब जो चैप्टर के एंड में डिराइव होगा. तो उसको मैं पहले स्टार्ट में ड्रॉ कर रहा हूँ. आई एम गोइंग टू डिराइव दिस कर्व इन फैक्ट. ठीक है, वो चैप्टर 3 में डेरिवेशन है. आपके लिए वो एक क्वेश्चन है, बट वहाँ वो पूरा चैप्टर है. तो पूरे चैप्टर से क्वेश्चन क्या बनेगा, उसको आंसर में क्या लिखना है. दिस इज गोइंग टू बी द एग्रीगेट सप्लाई. दिस एक्स एक्सिस इज आउटपुट, और यू कैन से जीडीपी, एंड वर्टिकल एक्सिस इज प्राइस. क्लासिकल कंसेप्ट इज बेस्ड अपॉन which is known as a classical dichotomy. The core of classical is classical dichotomy. And dichotomy word means, dichotomy means there is a separation between a real variable and nominal variable. पहले इसको समझ लेंगे. पहले when I said classical dichotomy refers to separation between nominal variable and रियल वेरिएबल. अब ये नॉमिनल क्या है और रियल क्या है? व्हाट इज नॉमिनल एंड व्हाट इज रियल? नॉमिनल वेरिएबल एक्चुअल में मॉनेटरी टर्म में होता है, और रियल फिजिकल टर्म में होता है. नॉमिनल इन मॉनेटरी टर्म, रियल इन फिजिकल टर्म. फॉर एग्जांपल नॉमिनल वेज. तो इफ यू एक्सप्लेन नॉमिनल वेज, तो वेज यू विल से इट इज से 100 रुपीज पर आवर. तो ये नॉमिनल वेज हो गया. इफ आई आस्क व्हाट इज रियल वेज, इट मीन्स व्हाट हाउ मच गुड्स यू कैन बाय विद दैट 100 रुपीज. सो हाउ मच गुड्स यू कैन बाय विद दैट 100 रुपीज, दैट डिपेंड्स अपॉन प्राइस. इफ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज ऑल्सो 100, देन यू कैन बाय 1 यूनिट. तो मैंने यहाँ पे रियल वेज जो लिखा है ना, वो W/P कर दिया. सो यू आर एबल टू बाई 1 यूनिट, बट वो यूनिट फिजिकल क्वांटिटी हो गई. इफ योर नॉमिनल वेज डबल्स फ्रॉम 100 to 200, if your nominal wage doubles from 100 to 200 and price also doubles from 100 to 200, then your real wage same. मतलब अगर ये W डबल हो गया और प्राइस भी डबल हो गया तो रियल वेज चेंज नहीं हुआ. सो यू हैव नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल GDP, रियल GDP. So what is nominal GDP and what is real GDP?
जब आप नॉमिनल जीडीपी कहते हो तो क्या कहते हो, प्राइस इनटू क्वांटिटी कर दिया। 2022 का जीडीपी है, प्राइस ऑफ 2022 मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। बट इफ यू वांट टू फाइंड रियल जीडीपी देन you take a base year price, so you keep price same and you just change the quantity. So I repeat, nominal is basically in monetary term and real is physical term. So this class is real or nominal? ये रियल है, इसकी जो फीस है वो नॉमिनल है, इसकी जो फीस है वो नॉमिनल है, मतलब नॉमिनल इन दैट वे, नॉमिनल तो वैसे नहीं है बट नॉमिनल इन क्लासिकल सेंस नॉमिनल है। दिस पेन इज रियल, इट्स प्राइस इज नॉमिनल। सो सपोज दिस प्राइस ऑफ दिस पेन इज 10 रुपीज, सो इन ऑर्डर टू बाय दिस पेन आई विल बी कीपिंग हाउ मच मनी, 10 रुपीज। इफ प्राइस डबल्स then to buy same unit I need to keep 20 rupees. So my nominal money demand changes, real does not. जो real है वो physical term में होगा, nominal monetary term में। nominal, ये wage भी nominal है, price भी nominal है। अगर हमने दो nominal का ratio ले लिया तो वो real हो गया। So when I will say y output, तो ये एक्चुअल में रियल जीडीपी है। इफ आई मल्टीप्लाइड विथ प्राइस इट बिकम्स नॉमिनल। सो इफ यू मल्टीप्लाई रियल विथ प्राइस इट बिकम्स नॉमिनल, एंड इफ यू डिवाइड दिस नॉमिनल विथ प्राइस इट विल बिकम रियल। तो किसी भी टर्म को अगर हम प्राइस से डिवाइड कर देते हैं, मतलब डिफ्लेट कर दिया उसको, तो प्राइस से डिवाइड कर दिया देन इट विल बिकम रियल। मल्टीप्लाई करने के बाद वो, तो अब आप ये बताओ, यहाँ दो वेरिएबल मैंने लिखे हैं, ये प्राइस लिखा है और ये आउटपुट लिखा है। आई सेड वाई आउटपुट इज रियल, रियल जीडीपी की बात हो रही है, प्रोडक्शन की बात हो रही है, और प्राइस क्या होगा? सो इफ यू अप्लाई द क्लासिकल डायकोटमी इट मीन्स if there will be change in nominal then it will affect other nominal but it will not affect real। डिटरमाइन होगा रियल से, नॉमिनल डिटरमाइन होगा, नॉमिनल रियल को डिटरमाइन नहीं करेगा। रियल डिटरमाइन बाय रियल फैक्टर्स, नॉमिनल डिटरमाइन बाय नॉमिनल फैक्टर्स, बट नॉमिनल विल नॉट डिटरमाइन द रियल फैक्टर। इन दैट वे दे आर सेपरेट। सो नॉमिनल इज बेसिकली प्राइस, रियल इज आउटपुट। So change in price will not affect output. Change in price will not affect output. So whether you keep price P1 or whether you keep price P2, in both case output will remain same because price is a nominal variable. But there are other nominal also, but graph के अंदर हमने दो nominal ले लिए। Price is not going to affect the output. तो ये जो chapter number 3 है, in that chapter you have to explain this concept in totality. ये कंसेप्ट आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, चैप्टर के एंड में मिलेगा ये डायग्राम। तो क्लासिकल डायकोटमी है, एंड दैट क्लासिकल डायकोटमी, सपोज आई सेड मनी एम, सो मनी इज अ रियल और नॉमिनल। मनी तो ऑलरेडी मनी सप्लाई जैसे हो गया, तो मनी सप्लाई वो तो ऑलरेडी मॉनेटरी टर्म है, तो इन इटसेल्फ इट इज अ नॉमिनल। तो वेदर नॉमिनल दैट इज मनी विल अफेक्ट आउटपुट, आउटपुट रियल है और मनी और डायकोटमी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मनी से आउटपुट इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो एक्सप्लेन करना है, वो दैट इज पार्ट ऑफ द मॉडल। बट कंक्लूजन तो क्लियर है, मनी इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट आउटपुट बिकॉज मनी इज अ nominal variable and in classical concept nominal will not affect real. Now what are the real factors then? रियल हो गया प्लांट, मशीनरी, लेबर, टेक्नोलॉजी, ये रियल है एंड दे विल अफेक्ट आउटपुट, वो आउटपुट को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब मैं जो आर्गुमेंट है वहां से बेसिकली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आई सेड y is a real factor, a real variable, so it will be a function of all real factors. So this k is, ऐड करते जाओ रियल बस उसके आगे, k is
रियल कैपिटल, रियल लेबर की बात हो रही है, मतलब उसकी एफिशिएंसी की बात होगी, प्रोडक्टिविटी की बात होगी. टेक्नोलॉजी इज अ रियल थिंग. सो वाई इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर. वाई इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर. So if you mark your y output and your labor keeping capital constant, capital को constant रखते हुए, मतलब plant और machinery को constant कर दिया और just change labor. So as you increase labor, what is the impact on output? With same plant and machinery, if there will be more and more employment of labor, with more labor can produce more of output. So production will increase, but it will not continue to increase in a constant manner. और ये माइक्रो भी नहीं है, मतलब वी आर नॉट डिस्कसिंग फर्म. तो देयर कुड बी इंक्रीजिंग रिटर्न फॉर सम फर्म, देयर कुड बी डिक्रीजिंग फॉर अनदर, देयर कुड बी कांस्टेंट फॉर सम. तो ये प्रोडक्शन का फंक्शन ड्रॉ कर रहे हैं आप. प्रोडक्शन एज अ फंक्शन ऑफ, प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर कीपिंग कैपिटल कांस्टेंट. इट मीन्स इफ यू से लेबर एम्प्लॉयमेंट इज L1, तो फिर करस्पॉन्डिंग टू दैट हाउ मच आउटपुट विल बी प्रोड्यूस, वो इस कर्व से मार्क करेंगे. तो अगर लेबर एम्प्लॉयमेंट L1 है, देन आउटपुट इज से Y1. इफ लेबर एम्प्लॉयमेंट इज L2, तो फिर आउटपुट विल बी सपोज Y2. मतलब प्रोडक्शन फंक्शन क्या डिटरमाइन करेगा, हाउ मच आउटपुट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय, हाउ मच आउटपुट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन अमाउंट ऑफ लेबर. हाउ मच आउटपुट विल बी प्रोड्यूस बाय गिवन अमाउंट ऑफ लेबर. मतलब आप ये लेबर पहले मार्क करेंगे, उसके बाद तो प्रोडक्शन मार्क होगा. प्रोडक्शन तो लेबर कैपिटल दोनों का आउटकम होगा, तो हम मशीनरी को चेंज नहीं कर रहे. अब एक क्वेश्चन रह गया कि हाउ मच लेबर हैज बीन एम्प्लॉयड. अब क्लासिकल मॉडल को रिकॉल करो. क्लासिकल मॉडल में वी ऑलवेज सेज व्हाट, देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट, देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट. तो अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है तो फिर लेबर का डिमांड और लेबर का सप्लाई बराबर होगा. एंड इफ दे आर नॉट इक्वल देन व्हाट विल हैपन, वे चेंज हो जाएगा. तो अब एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन करने के लिए वी मस्ट नो लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई. टू डिटरमाइन एम्प्लॉयमेंट वी मस्ट नो लेबर डिमांड एंड लेबर. ठीक है, अभी लिखना नहीं, वे समझ लेंगे पॉइंट को. Who demands labor? Manufacturers, you can say firms. So labor is demanded by firms. How much labor they will demand? They will demand that much of labor where their own profit get maximized. They are interested in their own profit maximization. So they will demand that much of labor where their own profit is, and profit get maximized where marginal revenue is equal to marginal cost. MR और MC इक्वेट करने. तो हम ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेबर डिमांड निकालना है यहाँ से, वो एक्सप्लेन करेंगे जब डिटेल में आप एक्सप्लेन करोगे. हु सप्लाइज लेबर, हाउस होल्ड वर्कर. तो लेबर इज बीइंग सप्लाइड बाई, हाउ मच लेबर दे विल सप्लाई, हाउ मच लेबर दे विल सप्लाई. तो अगर वेज ज़्यादा मिलेगा तो 24 आवर वर्क करोगे, नहीं करेंगे ना. उससे वेज पे ऊपर डिपेंड नहीं करता. वी नीड वीकेंड ऑल्सो, लॉन्ग वीकेंड हो तो ज़्यादा अच्छा. दैट मीन्स वी प्रेफर लेजर ऑल्सो. इट इज़ नॉट ऑल अबाउट मनी, इट इज़ नॉट ऑल अबाउट इनकम. सो वेज इज़ वन पार्ट, बट लेजर इज वी ट्राई टू मैक्सिमाइज आवर यूटिलिटी फ्रॉम बोथ, utility from money as well as utility from not working, that is leisure. So worker will supply that much of work where their utility get, household अपनी utility को maximize कर रहा है और firm अपने profit को maximize कर रहा है. तो पहले आप इन दोनों को एक्सप्लेन करोगे अलग अलग, फिर जहाँ लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई बराबर होगा दैट विल डिटरमाइन, और जब एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन होगा देन वी कैन डिटरमाइन आउटपुट. एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन होगा तो आउटपुट आएगा. हाँ बिल्कुल, ये डिटेल में आएगा. अभी मैं पूरे का जैसे एक फ्रेम दे रहा हूँ कि किस ऑर्डर में एक्सप्लेन करना है. तो एम्प्लॉयमेंट विल बी डिसाइडेड इन द लेबर मार्केट
by the intersection of labor demand and, so in detail you have to explain labor demand, in detail we have to explain labor supply, their equality will determine employment. After determining the employment, that employment may be L1, that may be L2, then you can determine the output and that output will be determined from here. तो ये स्टेप होगा पूरे चैप्टर के अंदर जिसमें हम प्रोसीड करेंगे. क्या क्लासिकल से पहले भी इकोनॉमिक्स थी? क्लासिकल से हमें स्टार्ट करना है फॉर द नीड ऑफ द सिलेबस. क्या उससे पहले की भी इकोनॉमिक्स? क्लासिकल का मेन कंट्रीब्यूशन क्या है? देयर मेन कंट्रीब्यूशन है दैट रियल फैक्टर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट. क्लासिकल से पहले द बिलीफ वाज ऑन मर्केंटलिज्म, बुलियनिज्म, मतलब अ कंट्री वाज सपोज टू बी मोर पावरफुल व्हेन दैट कंट्री हैज मोर स्टॉक ऑफ मेटल्स. जिसके पास ज़्यादा मेटल्स होंगे वो कंट्री ज़्यादा पावरफुल है. बट कंट्री के पास मोर मेटल्स कब कैसे अकोमुलेट होंगे? जब वो एक्सपोर्ट करे, इन एक्सचेंज उसने मेटल्स दिए, बट इंपोर्ट पे क्या करें? रिस्ट्रिक्शन लगाए. Restricting import and allowing export so that you can accumulate more capital, more metals. But nowadays we say that economy is more powerful if economy has more GDP. Wealth से नहीं determine हो रहा है. It is determined by how much output you can produce. Size of economy is not determined by that metals stock. Size of economy is now determined by how much economy can produce. So US is powerful not because it has more stock of metals, because it can produce more output. उसका प्रोडक्शन ज़्यादा है. तो ये जो आर्गुमेंट है ना, जो ये लेटर स्टेज वाले आर्गुमेंट है, जिसमें जो कंट्री ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, जिसका GDP ज़्यादा है, दैट कंट्री इज सपोज टू बी मोर स्ट्रॉन्गर. सो एज कंपेयर टू द अर्लियर बिलीफ, ये कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट है. तो क्लासिकल व्यू को एक्सप्लेन करना है. अब चैप्टर के नीड के अकॉर्डिंगली चैप्टर को आपको नोट्स में लाना है. तो फर्स्ट पैराग्राफ आप जरा लिख लीजिए. राइट डाउन द फर्स्ट पैराग्राफ. ठीक है, जब कंटेंट लिखेंगे आप जरा राइट डाउन. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट emerge classical economists emerge as a revolution against a body of economic doctrine or economic principle, a body of economic doctrine known as mercantilism. Two features of mercantilism were a Booleanism. Boolean means country is supposed to be more powerful, it has more metals. ठीक है, उसको एक्सप्लेन नहीं करना, इस कीवर्ड लिख लिया. And B, the belief in the need for state action, to direct the development of capitalist system. Next paragraph. In contrast to mercantilism,
Classical economists emphasized classical economists emphasized the importance of classical economists emphasize the importance of real factors in determining the wealth of a nation in determining the wealth of a nation. In determining the wealth of a nation, and they stress the optimizing tendency of optimizing tendency of free market in the absence of state control optimizing tendency of free market in the absence of state control. And what is the optimizing tendency of free market? मतलब क्लासिकल जो कंसेप्ट है वो किस इट इज बेस्ड अपॉन व्हाट? मार्केट फ्री है, मतलब मार्केट के ऊपर कोई रेगुलेशन, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस, एंड दैट फ्री मार्केट ऑप्टिमाइजेस, मतलब तो फ्री मार्केट फोर्सेस आर बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस. तो फर्म अपने प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज कर रहा है, मतलब मैक्सिमाइज कर रहा है. हाउस होल्ड अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहा है, एंड all are maximizing their own goal, and when they optimize their own goal, at the same time they are also optimizing the output also. जो profit maximizing output होगा वही better output है. Utility maximizing labor supply is the better labor supply. So free market is the assumption, मतलब कह सकते हो इसे perfect competition का market है. We are ruling out monopoly, ruling out monopolistic or oligopoly. So we are assuming that market is free and competitive. तो वो key assumption है. Free market is the key assumption of classical model. So firms are optimizing their utility profit, household are optimizing their utility, and output is determined by real factors. तो ये जो argument आप लिख रहे हो, जो real analysis है, ये की है, मतलब इस पॉइंट को बार बार आप अंडरलाइन करिएगा. क्लासिकल एनालिसिस इज बेसिकली अ रियल एनालिसिस ऑफ द इकोनॉमी. कंटिन्यू करना उसमें. क्लासिकल एनालिसिस वाज प्राइमरली a real analysis, underline that. The growth of an economy was the result of increased stock of factor of production, increased stock of factor of production, and advances in technology, according to classical money played a role only in helping transactions it means money only act as means of payment.
Next paragraph. Classical economists felt that free market mechanism classical economists felt that free market mechanism would work free market mechanism would work to provide market for any goods that were produced मतलब फ्री मार्केट ये गारंटी करेगा कि जो गुड्स प्रोड्यूस हो गया उसका मार्केट होगा, मतलब सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन, तो जस्ट ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे सेज लॉ, विद इन ब्रैकेट सेज लॉ. Therefore, two features of classical analysis arise as part of its attack on mercantilism. First, they stress the role of real factors. As opposed to monetary factors in determining output and employment. Yes, read that statement again. They stress the role of real factors as opposed to monetary factor in determining output and employment. Because जो output और employment है वो real है, तो वो किससे govern होगा? Real से govern होगा, monetary से govern नहीं होगा. Second, classical economists stress the self-adjusting tendency of economy. Self-adjusting tendency of economy. Self-adjusting tendency of economy. सेल्फ एडजस्टमेंट एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पे? व्हाट इज सेल्फ एडजस्टमेंट? सेल्फ एडजस्टमेंट है अगर लेबर का डिमांड और सप्लाई अगर इक्वल नहीं है एल एम्प्लॉयमेंट के लिए तो वेज एडजस्ट कर जाएगा. तो इकॉनमी के अंदर एक इनहेरेंट टेंडेंसी है दैट इट विल एडजस्ट ऑटोमेटिकली. नो नीड फॉर गवर्नमेंट टू इंटरफेयर एंड करेक्ट इट. इट हैज़ अ इनबिल्ट मैकेनिज्म और वो इनबिल्ट मैकेनिज्म आ गया विथ वेज फ्लेक्सिबिलिटी. तो इफ लेबर डिमांड एंड सप्लाई आर नॉट इक्वल देन वेजेस विल एडजस्ट automatically because market is working freely, but it is based upon a lot of assumptions. Obviously there will be some drawback, जिसकी वजह से क्लासिकल मॉडल की क्रिटिसिज्म लेटर ऑन बाद में होगा. तो लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई अगर इक्वल नहीं है देन वेज विल एडजस्ट. अब मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या करना होता है? मॉडल जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इनिशियली यू हैव टू लर्न सर्टेन टूल, बट इट विल नॉट बी गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ योर आंसर. क्वेश्चन तो कुछ अलग होगा, क्वेश्चन में हमें टूल नहीं समझाना, उस टूल को क्या करना है? यूज़ करना है. बट आपके नोटबुक में वो सारा होगा. तो जब आप मॉडल एक्सप्लेन करेंगे तो स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन से, देन यू विल एलैबोरेट लेबर डिमांड, देन यू विल एलैबोरेट लेबर सप्लाई, देन वी कैन डिटरमाइन एम्प्लॉयमेंट. After determining employment then we can determine the output.
एंड देन ऑनवर्ड्स यू कैन से कि वहाँ से आप क्वेश्चन प्रोसीड करते हो। कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे आउटपुट अफेक्ट होगा, किस फैक्टर से आउटपुट अफेक्ट नहीं होगा। यू कैन स्टार्ट विद द टूल पार्ट, few tools only. One will be the production function. तो ऐसे मेजर हेडिंग नहीं है, बस आप फ्रंट के अंदर भी ऐसे शॉर्ट हेडिंग होगी। कंसेप्ट एक ही एक्सप्लेन हो रहा है, दैट इज क्लासिकल एएस, बट टू डिराइव दैट क्लासिकल एएस वी हैव टू फॉलो certain tool. So your first tool is production function. So production is a function of what? Production is a function of कैपिटल, लेबर, टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। तो जो इक्वेशन लिख रहे थे उस इक्वेशन को अगर एक्सप्लेन करना होगा तो क्या करेंगे? प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट यूज्ड एंड आउटपुट प्रोड्यूस, उनके बीच का रिलेशनशिप है। जस्ट डिफाइन दैट टर्म। प्रोडक्शन फंक्शन समराइजेज द production function summarizes the relationship between production function summarizes the relationship between total input and total output, total and total output, total input and total output, assuming a given technology, assuming a given technology, assuming a given technology, full stop. The short run production function, the short run production function, short run production function is a technological relationship. Short run production function is a technological relationship, is a technological relationship that determines the level of output, that determines the level of output, that determines the level of output given the labor input, given the labor input. The equation के टर्म में you will write y is a function of कैपिटल और एम्प्लॉयमेंट को एन से डिनोट करना, मतलब जो टर्म यूज कर रहे हैं डिनोटेशन वो फ्रॉन में जैसे यूज किया वैसे, सो दैट अगर आप मटेरियल पढ़ रहे हो तो यू कैन रिलेट इट। सो प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, बट हमने इक्वेशन में कहीं टेक्नोलॉजी नहीं लिखा, इट मीन्स व्हाट, इसको कांस्टेंट ले रखा, वी आर टेकिंग इट कांस्टेंट, एंड देन इफ यू हैव टू ड्रॉ इट और प्लॉट इट, यू आर राइटिंग योर वाई एंड एन, रादर एन को यहाँ लिखिए एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट यहाँ लिखिए, y एज अ फंक्शन ऑफ हियर n एन वाई, ठीक है। यहाँ आउटपुट लेना है और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेना है। अब इक्वेशन में बताओ ना कितने वेरिएबल लिखे थे, y k n, एक्सेस पे क्या लिए, 2 लिए, तो जिस फैक्टर को हम एक्सेस पे नहीं ले रहे हैं उसको हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। so whatever relation that you will draw here will be based upon a constant stock of capital, will be based upon a constant stock of capital. So this capital is constant here, technology भी constant है, production function initially it could be state then diminishing return, y is a function of capital and employment of labor। अगर वो constant वाला टर्म चेंज हो जाए तो क्या होगा, suppose capital changes or technology changes, then what will happen, if capital and technology will change then same labor can produce more, so this function itself will shift, ये कर्व शिफ्ट हो जाएगा। और अगर एम्प्लॉयमेंट चेंज हो तो फिर मूवमेंट होगी ऑन दैट लाइन, बिकॉज यू हैव रिटन दैट वेरिएबल ऑन एक्सेस। सो इफ यू चेंज एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम n1 to n2, n1 labor can produce how much output, that will be determined from the production function, but if employment is n2 then you move along this curve and that output will be say y2, clear। और एक एडिशनल पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो,
प्रोडक्शन का जहाँ फंक्शन है, फ्रॉम देयर वी कैन फाइंड द मार्जिनल प्रोडक्ट, और मार्जिनल टर्म माइक्रो में और मैक्रो में हर जगह यूज होगा. मार्जिनल मीन्स additional. So if I say marginal product, it means additional product due to additional employment, additional labor. So it is additional product due to additional employment of labor. तो ये marginal product of labor है, MPN लिख देंगे. Change in output due to change in employment. जब marginal cost कहेंगे इसका मतलब additional cost due to additional quantity produced. Marginal utility, additional utility due to additional unit of consumption. Marginal revenue, additional revenue due to additional unit of goods sold. So marginal product is basically change in product due to change in labor. अगर आप मैथमेटिकली थोड़ा फेमिलियर हो तो ये वर्टिकल एक्सिस पे आउटपुट है, एक्स एक्सिस पे एम्प्लॉयमेंट है, तो ये dy बाई dx भी हो रहा है, मतलब स्लोप भी है. तो स्लोप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इज मार्जिनल प्रोडक्ट. वैसे सिंपली याद रखिएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट इज बेसिकली व्हाट, स्लोप ऑफ दिस लाइन. स्लोप ऑफ दिस लाइन इज मार्जिनल प्रोडक्ट. तो अगर लाइन स्ट्रेट बनाए तो स्लोप कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया तो फिर एंड देन इट इज गेटिंग फ्लैटर. फ्लैटर मीन्स स्लोप इज डिक्लाइनिंग. सो स्लोप इज डिक्लाइनिंग मीन्स मार्जिनल प्रोडक्ट इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग. So this is a marginal product of labor derived from this production function. So diagram draw कर लेना. ठीक है, तो ये फर्स्ट वी कैन से टूल, और उस टूल को अब एक्सप्लेन करें. मतलब आउटपुट कैन बी y1, इट कैन बी y2, इट कुड बी y3, ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ मच लेबर, बट लेबर विल बी एम्प्लॉयड इन द लेबर मार्केट, एंड लेबर मार्केट एम्प्लॉयमेंट विल बी डिसाइडेड बाई लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई. सो लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई. अब जो पॉइंट आपने एक्सप्लेन कर रखा है उसको एक्सप्लेन करना कि हाउ मच लेबर विल बी डिमांडेड. क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए. द मेन फीचर ऑफ क्लासिकल लेबर मार्केट, the main feature of classical labor market, the main feature of classical labor market is the assumption that market works well. मार्केट वर्क्स वेल, मतलब जो मार्केट है वो एफिशिएंट होता है. मार्केट वर्क्स वेल. Also firms and individual workers optimize their objective firms and individual workers optimize their objective and they have perfect information about relevant prices, and they have perfect information about relevant prices. Perfect information about relevant prices. Underline that word, perfect information. In addition, there are no barriers to adjustment. There are no barriers to adjustment. Of money wage and market always clear.
मार्केट ऑलवेज क्लियर, जो लिखा है जरा उस पॉइंट को पहले समझ लेंगे. We are simply assuming or following the classical assumption. As per classical assumption, the market works well, and we are referring to which market, and what is the nature of that market? Competitive है, जो प्रोडक्शन का आउटपुट होगा वो मार्केट कॉम्पिटिटिव है, मतलब लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आर देयर, दे आर प्रोड्यूसिंग होमोजेनस प्रोडक्ट. परफेक्ट इंफॉर्मेशन भी है, which means buyer and seller has exact information about price of the product. They have perfect information. There is no asymmetric information. One side of the market has more information, other side of the market has less information. We are ruling it out. So market is working well, and there is no interference from the government side, and labor demand is equal to labor supply, and if they are not equal, then if labor demand is more than labor supply, wage will increase, कोई restriction नहीं होगा. तो ये आर्गुमेंट बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. यहाँ तक का जो पॉइंट हो गया इसमें, अब लेबर डिमांड को अगर आप जस्ट एक पॉइंट तक मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आज की क्लास के लिए. दैट मीन्स वी हैव टू डिटरमाइन व्हाट एम्प्लॉयमेंट, एंड एम्प्लॉयमेंट इज डिसाइडेड बाय डिमांड फॉर लेबर, एंड हु इज डिमांडिंग लेबर, how much labor they will demand, जहाँ उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है. और प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज होगा, जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है. ठीक है. इन प्लेस ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू आई एम राइटिंग प्राइस. ठीक है, मैं बेसिक एक्सप्लेन करता रहूँगा सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो. In place of MR you are writing price because we have assumed market to be competitive. Perfect competition market में there are large number of buyers and sellers. Price is decided in the market by the market force, demand and so price is decided by the market force. But market के अंदर जो single firm है उसका price पे कोई control नहीं है. It means at same price, suppose this price is determined at 10, so at same price firm can sell 1 unit, 2 unit or 3 unit. So what will be total revenue, 10, 20, 30 हो जाएगा. and what will be MR, प्राइस कांस्टेंट है तो हर बार एडिशन भी 10 का ही होगा. तो फिर ये प्राइस का कॉलम और MR का कॉलम क्या हो गया, तो जो वट एवर इज द प्राइस, तो इसमें MR के क्या लिखा है, प्राइस लिखा है. अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है वहाँ पे, आप सिंपली डायरेक्टली यूज करेंगे, बट खुद समझ में आना चाहिए वाई यू आर राइटिंग इट. सो इन प्लेस ऑफ MR यू आर राइटिंग व्हाट, बिकॉज द मार्केट इज कॉम्पिटिटिव. मोनोपोली में नहीं होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन का ही फीचर है, और परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज द असम्पशन ऑफ क्लासिकल मॉडल. सो इन प्लेस ऑफ MR हमने प्राइस लिख दिया. नाउ सेकेंड है क्या, मार्जिनल कॉस्ट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब वही है एडिशन टू टोटल कॉस्ट ड्यू टू एन एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस्ड. अब आप ये बताओ हम प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आउटपुट, जो किसका फंक्शन है, कैपिटल और लेबर का, जबकि कैपिटल क्या बना रखा है, तो कैपिटल तो चेंज नहीं हो रहा है. तो वट एवर बी द एडिशन टू कॉस्ट that will be due to labor cost, because capital is constant, technology is constant. So addition to cost will be only because of addition to the labor cost. Addition to labor cost depends upon wage. If wage is, take this example, if wage is 100 rupees per hour,
if wage is 100 rupees per hour, that means for every extra hour you are giving labor 100 rupees. In that extra hour labor will produce how much output? Labor may produce one output, more than one output also. अब एक घंटे में लेबर जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, दैट आउटपुट विल बी कॉल्ड एज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर. अब मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू एडिशनल लेबर. सो सपोज यू हायर वन एडिशनल लेबर. लेबर का मतलब यहाँ पे 1 आवर के, आवर के टर्म में रिलेट करना. इफ यू हायर लेबर फॉर एन आवर, इन दैट आवर लेबर इज प्रोड्यूसिंग 2 यूनिट, देन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर विल बी 2 यूनिट. So it means for 2 unit you are giving 100 rupees. So for 1 unit it is 50. और 1 यूनिट के लिए जो कॉस्ट होगा उसी को क्या बोलना है? मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे. I repeat, if wage is 100 rupees, that means for 1 hour you are paying 100 rupees to the labor, but in that single hour labor is producing how many output? 2 units. So addition to cost will be 100 for 2 unit. Addition to cost will be 100 for 2 unit. So addition to cost for 1 unit will be 50, and 50 means it is wage divided by MPN. तो मार्जिनल कॉस्ट की जगह क्या लिखना है आपको? वेज अपॉन MPN किया. एनी प्रॉब्लम? वेज डिवाइडेड बाई MPN करेंगे. सो दिस वेज डिवाइडेड बाई MPN इज व्हाट? मार्जिनल कॉस्ट. सो नाउ यू कैन एक्सप्लेन दिस पार्ट इन दिस वे. Can we write this equation as wage upon price is equal to MPN? लिख सकते हैं? क्लियर है? अब मैंने वेज को प्राइस से डिवाइड कर दिया है. वेज को प्राइस से डिवाइड किया है तो क्या बोलेंगे उसको? प्राइस से डिवाइड किया है तो इट इज रियल. तो दिस रियल वेज इज इक्वल टू व्हाट? व्हेन प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज. तो जब प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा तो उस पॉइंट पे वर्कर का रियल वेज किसके बराबर होना चाहिए? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के बराबर होगा. जब प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा तो वर्कर का रियल वेज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के. अगर आप ये सारा नहीं भी लिखते हो, सिर्फ इतना याद रखोगे, दैट इज इनफ. आंसर में तो एक लाइन आना है बस. प्रॉफिट ऑफ फर्म गेट मैक्सिमाइज व्हेन फर्म एम्प्लॉय दैट मच ऑफ लेबर वेयर W by P is equal to MPN. That means real wage is equal to marginal product of labor. Real wage को marginal product of labor के बराबर करना है. Real wage must be equal to marginal product. जो वर्कर का रियल वेज है वो marginal product के बराबर अगर हो गया तो फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा. ठीक है? अब ये लाइन आपको मालूम है marginal product की लाइन कैसी है? फर्स्ट डायग्राम रेफर करो. जस्ट गिव 1 मिनट. ये मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व है. ठीक है? तो मैं अब इस मार्जिनल प्रोडक्ट के कर्व को बेसिकली सिर्फ ड्रॉ कर देता हूँ. सो इफ आई ड्रॉ दिस मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व MPN, अब आप ये था हाउ मच लेबर विल बी डिमांडेड. वी नो ओनली द कंडीशन, एंड कंडीशन इज वेयर W by P is equal to MPN. Given this MPN, if I mark the W by P here, तो इस W by P पे प्रॉफिट का मैक्सिमाइज होगा. यहाँ पे W by P किसके बराबर हो जाए? तो फिर लेबर का डिमांड इस पॉइंट से डिटरमाइन होगा. सो लेबर डिमांड इज N1 और लेबर डिमांड इज N1 इफ वेज इज W1 by. अगर रियल वेज थोड़ा कम हो तो मतलब ये पोजीशन यहाँ पे ना हो करके यहाँ रखे तो then same condition will satisfied here. Then labor demand will be N2. If you keep a higher, then less labor will be demanded. So if you connect these points, then these dots will basically represent the labor demand curve. So that labor demand curve is coinciding with which curve? लेबर का डिमांड किससे coincide होगा? तो अगर मैं कहूँ ड्रॉ लेबर डिमांड कर्व, आपको ड्रॉ क्या करना है? मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व ड्रॉ करना है. मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व इज लेबर डिमांड कर्व. मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व लेबर का डिमांड कर्व होता है. कितना याद रहेगा?
मार्जिनल प्रोडक्ट का भी लेबर डिमांड का, बट व्हाई यू से मार्जिनल प्रोडक्ट एज द लेबर डिमांड का? बिकॉज ओनली देन द प्रॉफिट ऑफ फर्म गेट मैक्सिमाइज, क्योंकि वी हैव डिराइव्ड इट फ्रॉम द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन, वो वहाँ से डिराइव हुआ है। अब ये तो समझने वाला पॉइंट हो गया कि आपने एक्सप्लेन क्या किया। जब आंसर लिख रहे हो तो इस डिस्क्रिप्शन को अगर आपको लिखना हो तो हाउ टू एक्सप्लेन दिस पार्ट, वहाँ तक का पार्ट से 5 की क्लास के लिए कर लीजिए, एक्सप्लेन दैट पार्ट। बट ये क्वेश्चन के ऊपर याद रखिएगा, हमेशा डिपेंड करता है, मतलब क्लासिकल अजम्पशन है, बट कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपको क्लासिकल मॉडल से तो क्वेश्चन दे रहे हैं बट वो अजम्पशन को थोड़ा चेंज कर लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ मैं शो कर दे रहा हूँ, जैसे ये इस टाइप के क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इस पे रीड करना है, क्वेश्चन नंबर 33। ये कह रहा है एक्सप्लेन हाउ इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट एंड रियल वेज वुड चेंज इन अ टिपिकल क्लासिकल मॉडल in the event of increase in supply of labor after comma money wage becomes rigid। तो एक तरफ ये क्या कह रहा है, क्लासिकल मॉडल, तो मतलब क्वेश्चन क्लासिकल मॉडल का है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लासिकल मॉडल यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड रियल वेज इफ लेबर सप्लाई इंक्रीजेज, मतलब लेबर का सप्लाई अगर बढ़ गया तो क्या इम्पैक्ट होगा, और साथ में ऐड क्या कर रहे हैं, वेज बिकम्स, बट रिजिड वेज तो क्लासिकल असम्पशन नहीं होता है, बट ये तो क्वेश्चन हो गया। अब मतलब क्वेश्चन क्लासिकल का है और असम्पशन क्या ले लिया, केन्स वाला ले लिया, तो आउटकम कैसा आ जाएगा, क्वेश्चन क्लासिकल का पूछा, साथ में यहाँ ऐड कर दिया कि वेज को रिजिड रखना है, फिर तो क्वेश्चन के आगे तो क्वेश्चन नहीं करना है ना, हमें क्लासिकल में वेज रिजिड लेना है, but rigidity of wage is an assumption of Keynesian। so if you follow the Keynesian assumption तो फिर आउटकम भी Keynesian वाला आ जाएगा, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा वहाँ पे, ऑल्दो आप क्लासिकल मॉडल ही पढ़ रहे हो। ईच मॉडल तब तक सही है जब तक हम उसके assumption को क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। assumption बदल दोगे मॉडल डिफरेंट होगी, आउटकम डिफरेंट आएगा। if you follow the Keynesian assumption then outcome will be similar to Keynesian। if you follow the classical then outcome will be very similar to classical। तो ऐसे मतलब कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन भी फेस करने पड़ेंगे, बट इफ़ यू नो द कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आप वहाँ से इजीली आंसर कर सकते हो। मतलब कंबाइन करके ऐसे क्वेश्चन होते हैं वहाँ फ्यू। यहाँ तक का पार्ट सिर्फ मनी लेबर डिमांड वाले सेक्शन को कंप्लीट कर लो बस। राइट डाउन जस्ट वन पैराग्राफ। लेबर इज डिमांडेड बाय फर्म्स, one paragraph, last paragraph. Labor is demanded by firms. Labor is demanded by firms and competitive firms. Labor is demanded by firms and competitive firms will always employ that much labor. Competitive firms will always employ that much labor, will always employ that much labor where their own profit get maximized, where their own profit get maximized, where their own profit get maximized। As we know, profit get maximized when MR is equal to MC। Profit get maximized when marginal revenue is equal to marginal cost। So under perfect competition, marginal revenue is equal to price, marginal revenue is equal to price, and marginal cost
will be determined by marginal labor cost, will be determined by marginal labor cost, which is इक्वेशन लिखेगा W अपॉन एम्पियर, ये मार्जिनल लेबर कॉस्ट है, वेज अपॉन एम्पियर, वेज अपॉन एम्पियर. Therefore at profit maximization, P equal to W by ampere. At profit maximization, therefore at profit maximization, price equal to W by ampere. Price equal to W by ampere or W upon P is equal to ampere. That is why marginal product curve of labor that is why marginal product curve of labor is labor demand curve, underline that. Marginal product curve of labor is labor demand curve. ठीक है, below this diagram draw कर दीजिए, labor demand curve के लिए draw करना. Whenever you have to draw the labor demand curve, draw this MPN curve. और अगर मैं इसे W इक्वल टू MPN इंटू प्राइस लिखो तो क्या होगा? W बाई P को क्या रेट कर रहे थे? रियल वेज. तो दिस W इज नॉमिनल वेज हो गया. नॉमिनल मॉनेटरी टर्म में होगा. ओनली W इज नॉमिनल वेज. So nominal wage is equal to what? Marginal product multiplied by price. So if you multiply marginal product with price, तो marginal product की वैल्यू आ जाएगी. marginal product तो फिजिकल क्वांटिटी में है, प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसकी वैल्यू मिल गई मुझे. तो वैल्यू मिलने का मतलब है उसे कहते हैं वैल्यू ऑफ marginal product, VMP, and that VMP will be equal to what? तो डायग्राम पे इसका ध्यान रखिएगा. अगर आप W और MPN ले रहे हैं तो wage will be equal to VMP, but when you write wage equal to VMP, this is nominal wage equal to value of marginal product, or you can write W by P equal to MPN. एक ही बात है, ये nominal के टर्म है और ये real के टर्म है. This is nominal and this is real. Nominal wage is equal to VMP and real wage is equal to marginal product. तो आप सिर्फ लेबर डिमांड जहाँ ड्रॉ करना है वहाँ पे आपको ये लाइन ड्रॉ कर देनी है बस. बट सिर्फ लेबर डिमांड से एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन नहीं होता है. एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन करने के लिए भी नीड अदर साइड इज लेबर सप्लाई एंड डिमांड बोथ विल डिटरमाइन एम्प्लॉयमेंट एंड देन वी कैन डिटरमाइन द आउटपुट फ्रॉम द प्रोडक्शन फंक्शन. तो ये कंटेंट बेसिकली यहाँ से भी कंटिन्यू रहता है. ये चैप्टर नंबर 3. मतलब अगर आप मटेरियल अगर आप पढ़ रहे हो तो मैक्रो वाले मटेरियल के अंदर ये कंटेंट स्टार्ट के वी कैन से 5-6 पेजेस के अंदर ये कंटेंट यहाँ तक एक्सप्लेन है. बट जो नोटबुक में लिखा है वो फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन हो गया. जो मेन पॉइंट्स है वो आपने लिख दिया. वी आर एक्सपेक्टेड टू नो, मतलब और अगर आंसर लिख रहे हैं तो ऐसे वर्ड्स में लिख देना, लिखना वैसे ही. तो अभी हमने बेसिकली लेबर सप्लाई का लेबर डिमांड का सिर्फ किया है. आप उसमें लेबर सप्लाई ऐड करोगे तो एम्प्लॉयमेंट आएगा, देन वी कैन डिटरमाइन दी आउटपुट. तो चैप्टर नॉट कंप्लीटेड, चैप्टर अभी इन बिटवीन है. चैप्टर का सिर्फ वन पार्ट आपने कवर कर रखा. तो लेबर डिमांड वी नो, नाउ वी हैव टू ऐड लेबर सप्लाई, देन वी कैन डिटरमाइन एम्प्लॉयमेंट बाय इक्वेटिंग लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई. आफ्टर डिटरमाइनिंग एम्प्लॉयमेंट देन वी डिटरमाइन आउटपुट. आफ्टर डिटरमाइनिंग दैट आउटपुट देन वी कैन ड्रॉ दी सप्लाई कर, जहाँ पी और वाई का रिलेशन आएगा. ठीक है, वो चैप्टर के अंदर होगा. कंटिन्यू रहेगा, इसे फॉर्म में रखिएगा क्लास कल.
ठीक है, जो ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन सिर्फ ये कि जो क्लास मतलब अगर डाउट का एक फीचर अभी आज की क्लास के लिए ऐड नहीं किया था, तो डाउट पूछने का जो फीचर होगा उसमें क्लास एंड होने के बाद हाफ एन आवर के लिए वो पोर्टल पे ही वो अपना डाउट पूछ सकते हैं, मतलब उसके लिए आपको सेपरेट एक लिंक मिल जाएगी, ठीक है। बट जो ऑफलाइन है वो दे आर फ्री, वो आप बीच में पूछो क्वेश्चन। जो ऑनलाइन कर रहे हैं उनके लिए वो क्लास के बाद अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कंटिन्यू रहेगा क्लास नंबर 2 से। डिटेल मैंने आपको स्टार्ट में बता रखा है सारा, नोट्स वगैरह सब जो स्पायरल होंगे वो आप यहाँ से कलेक्ट कर लोगे, और जिनका ऑनलाइन है वो कुरियर से जाएगा। बट अदरवाइज नोट्स वाले सेक्शन को यार के मतलब ऑफलाइन भी कर रहे हैं तो आपके पास जो टेस्ट सीरीज़ है वो ऑनलाइन रहेगी, मतलब कोर्स का एक्सेस ले लीजिएगा। उस कोर्स के एक्सेस में फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चन होगा, मटेरियल होगा एंड सो ऑन। क्लियर? चलो यहाँ से कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।